हाय एवरीबॉडी, नमस्कार, वेलकम टू स्टेनलेस बाजार कम्युनिटी मीट। ये हमारा थर्ड वेबिनार है इन द सीरीज ऑफ दिस कम्युनिटी मीट, जो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं टू एड्रेस वेरियस टॉपिक्स, वेरियस इश्यूज जो हमारे इंडस्ट्री को एंड ऑल्सो अपॉर्चुनिटीज जो हम लोग साथ में मिलकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। मेरा नाम जितेंद्र अग्रवाल है। आई एम द फाउंडर ऑफ स्टेनलेस बाजार एंड ऑल्सो आई एम द चीफ विजन ऑफिसर फॉर होम जोन स्टेनलेस प्राइवेट लिमिटेड। स्टेनलेस बाजार, एक सेकंड में आपको सिर्फ बता देता हूँ व्हाई वी डिड इट। इट्स अ डिजिटल मार्केट प्लेस जो डेडिकेटेड है स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री को। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ स्टेनलेस स्टील की बात करते हैं। इंटरनेशनल लोग भी इसमें ज्वाइन करेंगे। डोमेस्टिकली हमारे 2800 कंपनीज हैव ऑलरेडी जॉइंड अस इन 5 मंथ्स। और एक अटेम्प्ट है कि सबको एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे चाहे वो छोटा आदमी हो, इट कुड बी द स्मॉलेस्ट कंपनी, इट कुड बी द लार्जेस्ट कंपनी, दे कैन कम ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। ये आज की ज़रूरत है, ये डिजिटल फ्यूचर है। एमएसएमईज को सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत है एंड आई थॉट ये एक हमारा अटेम्प्ट है उसकी तरफ जाने का। हिंदुस्तान में कुछ 65 करोड़ एमएसएमईज हैं, जिसमें बोलते हैं कि सिर्फ 10 लाख डिजिटल हैं। एंड आई थिंक आफ्टर दिस पेंडेमिक तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है कि लोग अपने शायद कस्टमर से, सप्लायर से इतनी फ्रीक्वेंटली नहीं मिल सकते हैं, तो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की शायद अब तो ज़रूरत है। इट्स नो मोर अ लग्जरी, इट्स अ नीड। दैट्स व्हाट आई थिंक। तो इस थॉट से मैंने स्टेनलेस बाजार एक फाउंड किया एंड एक मैं छोटा प्रीव्यू आपको दिखाना चाहूंगा कि व्हाट इट इज अबाउट। कैन वी गो लाइव ऑन दैट प्लीज? Finally, the stainless steel industry gets its digital platform. If you have anything to do with the stainless steel business, keep watching. The next 2 minutes will revolutionize the way you conduct your business. Stainless Bazaar app. One nation, one market, one app. Give us basic information about yourself and register for free. You will immediately become a part of this digital revolution. We will customize the information displayed on the app according to your preferences. As a user, you get your dashboard to manage your buy or sell leads. If you want to buy SS of any grade, make or finish, view leads, connect with member and negotiate your deal. SB is a platform that connects businesses, and we do not interfere or engage in any negotiation between two members during the deal. You can also add the leads to your wish list and follow up at a convenient time. If you want to sell stainless steel material, post a lead alerting our massive database of buyers and get instant inquiries. You know the deal is done when you see a handshake icon on your deal screen. Sauda Pakka. Thank you so much for taking our time to just go through this preview and a very nice saying by Victor Hugo, जो एक बहुत बड़े फ्रेंच पोएट थे, कि there is no bigger force in the world than an idea whose time has come. तो मुझे लगता है कि कोई भी एक ऐसा आइडिया किसी के पास भी है जो आपको लगता है कि आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तो उससे बड़ी ताकत, उससे बड़ा पैशन वर्ल्ड में कोई नहीं। सो थैंक यू फॉर दिस। आई वुड लाइक टू स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग आवर चीफ गेस्ट फर्स्ट, मिस्टर सुधीर गर्ग. Shri Sudhir ji, thank you so much for joining us and taking our time. Joint Secretary, MSME Ministry of Government of India. Thank you so much, sir. Mr. Saurav Vajpayee, he is the AGM for SIDBI. Again, thank you so much for taking out time, and we really hope कि आप you really shatter a lot of myths that people have about funding for MSMEs. Mr. Dev Kumar, he is a director, Public Sector Practice, Grant Thornton. Welcome, Dev. So much. And Mr. Rajiv Bajaj, who is a director, PNB KitchenMate, जो stainless steel cluster के बारे में he is going to tell us his own experience जो इन्होंने कुंडली में किया है, and it's a very very interesting concept जिसको हम लोग adapt कर सकते हैं. Extremely esteemed set of panelists, Mr. Bhalaria, who we are waiting for, Mr. Hiten Bhalaria, MD Bhalaria Metal Craft Private Limited, Mr. Pawan Kansal, Chairman Jagdamba Cutlery. Pawan ji,
Namaskar, thank you. Karan, my good friend, MD of Hisar Metal Industries Limited, and Anish, the rising star in the industry, Anish Bansal, MD of Maven AB Inox LLP. And finally, Shri Vijay Sharma. I think everybody knows Sharma ji is a director with Jindal Stainless Group, and he is extremely passionate about well-being of MSMEs and बहुत काम करते हैं शर्मा जी in this segment. बहुत strong interface है उनका with MSMEs in utensils, households, pipe, EV manufacturing, which is coming up in a very big way. Fabrication, बहुत ज़्यादा एक इनका passion है. And Sharma ji is an active member in various associations, ASSOCHAM Haryana, co-chair PhD CCI Haryana, and FICCI CII. He's also on the board of IISSC, and he's an engineer and MBA. So Sharma ji, you have a unique skill set of technical this thing with an MBA. And I would like Sharma ji to share his experience and start with a keynote for our members. Over to you, Sharma. थैंक यू जितेंद्र। मुझे लगता है कि ये शायद समय समाज को वापस देने का है। वो हम लोग मिलकर अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। और यस, आई स्ट्रांगली बिलीव सह अस्तित्व और इकोसिस्टम के अंदर जितने भी लोग हैं उनका सबका एवरीबडी शुड हैव द समृद्धि, स्थिरता होनी चाहिए। तो आदरणीय श्री सुधीर गर्ग साहब, आपसे मुलाकात का सौभाग्य नहीं मिला है, लेकिन मैं सबके बेनिफिट के लिए कहना चाहूँगा, इनसे बेहतर उपस्थिति जो है हमारे इस वेबिनार में नहीं हो सकती है। इनका जो मैं वास्ट एक्सपीरियंस जो मैंने स्टडी किया है सर, मैं आपसे आके भी मिलूँगा। इट इज़ हाईली मोटिवेटेड पीपल लाइक मी। साहब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को लीड करते हैं, एग्जिस्टिंग 18 को संभालते हैं, नए 15 की जिम्मेवारी है। एमएसएमई के लिए जो टेक्नोलॉजिकल उद्धार है IR 4.0, गर्ग साहब पिछला वेबिनार हमारा ऑटोमेशन के ऊपर ही था, तो हमने ऐसे शब्दों के से ही लोगों को थोड़ा जागरूक कराने की कोशिश की थी, जिसके आप एक्सपर्ट हैं सर। मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल सॉल्यूशंस की जिम्मेवारी साहब के पास है। इनका एक्सपीरियंस में रीन्यूएबल एनर्जी का एक्सपीरियंस आता है, कार्बन फुटप्रिंट का आता है, रेलवे के अंदर साहब ने बहुत कुछ किया है, तो इनसे बेहतर हमें एक्सपर्ट नहीं मिल सकते थे। देव कुमार जी, आपसे हम थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। सिंपल भाषा में क्या क्या स्कीम्स उपलब्ध हैं जो हमारे एमएसएमई हैं जो समझ पाएँ, बड़ा अच्छा रहेगा। और वाजपेयी जी, ऑफ कोर्स ये जो सरकार का चेष्टा है वो एमएसएमई तक कैसे पहुँचे, आई एम वेरी श्योर यू आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट अ लॉट। गर्ग साहब, इस वेबिनार से पहले मैं अपने एमएसएमई मित्रों से जब मिला तो मुझे कुछ थोड़ा सा तकलीफ सी हुई। मुझे उनमें उदासीनता दिखाई दी, कुछ अरुचि भी दिखाई दी, कुछ दर्द भी दिया। तो मैंने समझने की कोशिश की ऐसा क्या है। तो मुझे उन्होंने सर एक उत्तरदायित्व दे के भेजा है कि उनका जो मन में है मैं इस पूरे वेबिनार के अंदर सामने रखूं। कुछ चीज़ें उनकी हैं, उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए हैं और कुछ मेरे भी इसके अंदर व्यूज़ हैं। कोई उनके इमोशंस अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लगें तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन उनका जो रियल पेन है वो सामने आना सर आवश्यक है सर। ये सर, आज इस वेबिनार के अंदर डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज में जो स्टेनलेस स्टील से संबंधित हैं, यूटेंसिल्स बहुत बड़ा ग्रुप है ये, पाइप एंड ट्यूब फैब्रिकेटर्स, ईवी बनाने वाले खासकर 3 व्हीलर्स, कुछ एमएसएमई में प्राइमरी प्रोड्यूसर्स भी हैं, पाटा फ्लैट वाले, लाइट सर्विसेज हो गए, सर्कल कटर्स हो गए, वेल्डर्स हो गए, प्रेस ओनर्स हो गए, इस तरीके के लोग हैं। सर, इस एक्सपर्ट पैनल को एमएसएमई के बारे में करीब करीब सब कुछ पता है, लेकिन एमएसएमई को शायद नहीं पता है कि वो कितना देश के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आई वुड लाइक टू मोटिवेट देम एंड आई वुड लाइक टू अपलॉड देम कि एमएसएमई बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी, 30% जीडीपी, इट्स अ बिग नंबर, 50% एक्सपोर्ट, सेकेंड बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर। तो ये जो हमारे ऑडियंस हैं ये उनका देश को चलाने में कंट्रीब्यूशन है। लेकिन सर, जब मैंने एमएसएमई के लोगों से बात की तो जो उन्होंने मुझे कहा तो मैं वो शेयर करना चाहूँगा। कुछ ये भी पता लगा कि जो एमएसएमई के अंदर पहला एम जो है 5 करोड़ से नीचे वाला वो 92% है, 92%, और अगर हम उसका पेरेटो करें तो शायद उसके अंदर भी 1 करोड़ की तरफ वाले बहुत ज़्यादा पाए जाएंगे, शायद 5 करोड़ की तरफ वाले बहुत कम पाए जाएंगे।
जब ये 1 करोड़ जैसे लोग बहुत ज़्यादा हैं तो शायद ये सिंगल मैन आर्मी है, शायद 2 भाई भी हो सकते हैं, शायद बाप बेटा भी हो सकते हैं, जिनको राइट फ्रॉम मार्केटिंग से लेके, प्रोडक्शन से लेके, सप्लाई चेन से लेके, बैंकिंग से लेके, डिस्ट्रीब्यूशन से लेके सब कुछ खुद करना पड़ता है। तो उन्होंने मुझे ऐसा समझाने की कोशिश की, लेबर इंटेंसिव है, स्किल्स का चैलेंज है, टाइनी है, प्रोडक्टिविटी नहीं आती है, स्केल का इशू है, टेक्नोलॉजी की समझ नहीं है, और ये जो बड़े बड़े शब्द हैं IR 4.0, ERP, ये इतने छोटे लोगों के लिए शायद ये अवेलेबल भी नहीं है। फाइनेंशियल समझ नहीं है, समाधान तक कैसे पहुंचा जाए उसका नहीं पता, और जब पहुंच जाते हैं तो हमें वितरण करने वाले जो लोग हैं वो हमारे पे विश्वास नहीं करते हैं। सर, इन्हीं चीज़ों को देखते हुए, जैसे मिस्टर अग्रवाल ने बताया, हम कुछ महीने से प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को किस तरीके से ऐसे फोरम पे ला पाएं। सर इस सबके चलते हुए ऐसा लग रहा है कि उन लोगों की जो इच्छा शक्ति है वो एकदम से वो विड्रॉल मोड में आ गए हैं। इनफैक्ट हमें आज के वेबिनार में, जो पहले वेबिनार्स के अंदर हमारे 600 700 पार्टिसिपेंट होते थे, शायद इस टॉपिक के ऊपर लोगों का थोड़ा रुझान भी कम हो गया है कि क्या फ़ायदा। इसके अलावा सर जो हम सब जानते हैं, सिर्फ इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे लिसनिंग भाइयों को ये फील रहे कि हम उनकी चैलेंजेस को समझ पा रहे हैं। कोविड की वजह से जो डिस्ट्रप्शंस हुई हैं, लोकलाइज्ड हेल्थ प्रोटोकॉल्स, कैश फ्लो, ऑल दिस थिंग्स, खासकर जान की हानि की वजह से, सर हमारे मेंबर ये भी समझते हैं एंड दे वुड लाइक टू गिव ए बिग अपलॉड टू द गवर्नमेंट फॉर द कंटेंट एंड द इंटेंट। गवर्नमेंट चाहती है और गवर्नमेंट ने एलोकेशंस भी बहुत की है, बहुत अच्छी बड़ी बड़ी स्कीम्स भी हैं, चाहे वो 3 लाख करोड़ की ECLGS है, चाहे 20,000 करोड़ की सबऑर्डिनेट डेट है, चाहे 50,000 करोड़ का इक्विटी इन्फ्यूजन है। लोग समझते भी हैं इस चीज़ को, बिकॉज आजकल व्हाट्सएप के अंदर, लेकिन उनका कहना यह है कि इसका हमें लाभ क्या मिला। जब वो इस तरीके की उन्होंने बात की तो हमें शायद लगा कि स्टेनलेस वाले लोग ही तो नहीं पीछे चल रहे हैं, तो हम लोगों ने कुछ दूसरी इंडस्ट्रीज में कुछ प्राइमरी डाटा सोर्सिंग करने की कोशिश की। तो सर ऑल ऑफ अस नो वेरी वेल, 6.5 करोड़ MSME, शायद 2.5 करोड़ ट्रेडर इसके अंदर हैं या इसके ऊपर हैं सर, लेकिन रजिस्ट्रेशन जो है उद्यम के अंदर वो 5% ही है। रीज़न सर कई हो सकते हैं, GST है, पैन है, रीज़न कुछ भी हो सकते हैं सर। और उसकी जो अवेलमेंट है, अभी सर 27 जुलाई को एक राज्यसभा लोकसभा में रिपोर्ट नंबर 308 टेबल हुई है सर, उसके अंदर हमने पढ़ा विच इज रिलेटेड टू द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन MSME सेक्टर एंड मिटिगेशन स्ट्रैटेजी। उसके अंदर ये पढ़ा कि फॉर द 20,000 करोड़ सबऑर्डिनेट डेट स्कीम विच आर सपोज टू गिव बेनिफिट टू 2 लाख MSMEs, ओनली फ्यू हैव अवेल्ड। उन्होंने सर नंबर भी नहीं दिया, तो वी कैन अंडरस्टैंड। एक सर ये ऑब्जर्वेशन भी आई है कि इतना अच्छा गवर्नमेंट का प्रयास है, पर जो इमीडिएट कैश फ्लो इंप्रूवमेंट टू जनरेट डिमांड एज इमीडिएट रिलीफ है, वो ऑब्जेक्टिव शायद अचीव नहीं हो रहा। बट फॉर द लोन ऑफरिंग्स एंड लॉन्ग टर्म मेजर्स परहैप्स इट इज गुड। तो सर इन सब के चलते हुए जब मैंने MSME से बात की, उन्होंने इस तरीके का पिक्चर दी, कहते साहब, शर्मा साहब, आप एक दूसरी दुनिया से आते हैं, ये 2 अलग अलग वर्ल्ड हैं, एक है इंटरनेट का वर्ल्ड है, एक हमारी दुनिया है। हमारी दुनिया में आइए, वसई के अंदर गलियों के अंदर घूमिए और कुंडली के अंदर चक्कर लगाइए और दोनों दुनिया को इकट्ठा जोड़ने का प्रयास कीजिए। तो सर जो हम समझे हैं, जो उनका रियल इश्यूज हैं, इंटेंट की बात नहीं हो रही सर, कंटेंट की बात नहीं हो रही है सर, साइज की बात नहीं हो रही है। इसके अंदर सब कहते हैं कि हमें मालूम है कि सरकार हमारी मदद करना चाहती है, लेकिन जो इश्यूज हैं सर, पहले इशू है सर जागरूकता का, लोगों को मालूम नहीं है कि सरकार क्या करना चाहती है। दूसरा है सर पहुंच का, एक्सेस का, कि पहुंचे कैसे। तीसरा है सर जो तुरंतता, इमीडिएसी है कि मुझे मिलेगा कैसे। सर आपके प्रोफाइल के अंदर एक टेक्नोलॉजी है सर, तो मैं सर इस परिस्थिति को एज कंप्यूटिंग से रिलेट करता हूं सर मैं, कि जहां पे तकलीफ है सर, इसका सोल्यूशन वहीं पे चाहिए सर, वहीं पे एम्पावरमेंट चाहिए, वहीं पे इंस्ट्रक्शन की वेट नहीं होनी चाहिए, नोटिफिकेशन ऐसी होनी चाहिए, पीपल आर एबल टू टेक द डिसीजन राइट देन एंड देयर एंड पीपल शुड गो बैक हैप्पी। तो सर इनसे पूछा कि ये तो बताइए कि प्रॉब्लम तो बहुत है, तो सोल्यूशन क्या है ग्राउंड के ऊपर। सर the people are very intelligent, they came with some sort of proposals also। पहले बोले सर थोड़ा पॉलिसी और सिस्टम के अंदर इंप्रूवमेंट चाहिए, कि इंस्ट्रक्शन की जो अफसर है वो वेट ना करें, उनको पहले इंस्ट्रक्शन मिलनी चाहिए, उनको ऑथराइजेशन होनी चाहिए, उनको अवेयरनेस होनी चाहिए, उनकी जवाबदेही होनी चाहिए कि ऑन द स्पॉट वो डिसीजन ले पाए, पीछे से इंस्ट्रक्शंस की वेट ना करें। सर बिग डाटा एनालिटिक्स विच इज वेरी क्लोज टू योर हार्ट ऑल्सो एंड माई हार्ट ऑल्सो, विच हेल्प्स अस इन द रियल टाइम करेक्शंस, उसका यूजेज हो जाए। और सर मोर एम्पावरमेंट टू फिनटेक, NBFC एंड ट्रेड्स। दूसरा सर उन्होंने लार्जर जो सजेशन दिया है, ईज ऑफ डूइंग,
कहते कि सर जैसे आपने आरोग्य सेतु के लिए सरकार ने इतना ज्यादा किया, कहते ऐसा कुछ हो सकता है कि पेटीएम जैसे किसी ऐप के ऊपर ही हमारे को लोन मिल जाए और हम आगे अपने जिनसे उधार लिया उनको दे पाए। सो इंटरेक्टिव ऐप, हेल्पलाइन, सिंगल विंडो एंड इमीडिएट सॉल्यूशंस। उन्होंने सर एक चीज और प्रपोज की है, ग्राउंड एक्शन। कहते हैं साहब हम अपने एरियाज को आपको एक टेस्ट करने के लिए, प्रोजेक्ट के लिए ऑफर करना चाहते हैं, सो दैट कि जो भी स्कीम को ग्राउंड के ऊपर हम अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आप वसई में कर लीजिए, कुंडली में कर लीजिए, जगाधरी में कर लीजिए, एनी ऑफ सच एरियाज। पीपल आर अपबीट सर, however they need that support. Issue is of first survival, and of course then we will talk about the revival. We look forward to the guidance of Shri Garg Saab and other experts on behalf of the industry and this group, sir. We are fully committed. I will end with Jai Hind, and like I always say, comeback is always greater than setback. Thank you. Namaskar, sir. Thank you so much, Arvind. Garg Saab, we would love to hear from you. नमस्कार सभी साथियों, के शर्मा जी, अहलावत जी और सभी पैनलिस्ट्स और मेरे जो बाकी एमएसएमई के साथी जुड़े हुए हैं। विजय कुमार जी ने काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं और पहले तो मैं इस संस्था को और इससे जुड़े हुए सभी लोगों को बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं कि एक आपने जो एक मिशन बीड़ा उठाया है कि कैसे लोगों तक इस चेंज एनवायरनमेंट में, जहाँ पे कि बदलाव तो चलता रहता है लगातार, लेकिन ये जो बदलाव की स्थिति एक अकस्मात पैदा हुई है, एक डिस्रप्शन हुआ है, उस वाइज कंडीशन में हम लोगों को अपने साथ कैसे लें, और उसके लिए जो आपने बीड़ा उठाया कि सभी लोगों को कनेक्ट करके और हम लोग मिलजुल के आगे कैसे चलें और एक दूसरे की समस्याओं को कैसे सुलझाते हुए आगे बढ़ा जाए। मैं बहुत सारी बातें जो आपने अभी कही उससे वाकिफ रखता हूँ, उससे कनेक्ट करता हूँ अपने आप को, और ये मानता हूँ कि एमएसएमईज जो हैं वो एक बहुत ही उन्नत किस्म का एंटरप्रेन्योर होता है, बहुत ही इनोवेटिव किस्म का एक वो व्यक्ति होता है जो कि अपनी एमएसएमई की शुरुआत करता है। ये बात सही है कि जब इस तरह की बहुत बड़ी बाधा आती है और डिस्रप्शन, जब मेजर डिस्रप्शन सिस्टम में होता है तो एक चलती हुई गाड़ी को बड़ा ज़बरदस्त झटका लगता है और उसमें बहुत सारे लोग ऐसा महसूस करने लग जाते हैं कि अब क्या होगा। लेकिन मैं ये पहला तो आपको ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि मंत्रालय और हमारे माननीय मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी का हमेशा इस मंत्रालय और इस वर्क पे स्पेशल ख्याल है। लगातार इसमें बहुत टाइम डिवोट कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों को सुलझाने के लगातार सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अगर हम लोग लगातार वार्तालाप करते रहेंगे और एक कंस्ट्रक्टिव फ्रेमवर्क में वार्तालाप करते रहेंगे तो जरूर जो हमारी समस्याएं हैं उनका सुलझाना निकलेगा और फास्टर वे से निकलेगा। जो अभी आपने ये स्टेनलेस स्टील बाजार का जो प्लेटफॉर्म चालू किया है, ये बहुत ही एक उम्दा और बढ़िया कार्यक्रम किया आपने, और मैं समझता हूँ कि इसकी वजह से जो हमारे कंज्यूमर्स हैं और जो इंडस्ट्री के पर्टिकुलरली जो बायर्स हैं उनके कॉस्ट में इम्पैक्ट आना चाहिए, उनकी कॉस्ट रिड्यूस होनी चाहिए, क्योंकि स्टील का एक ऐसा एरिया है जहाँ पे कि लगातार एमएसएमईज राइजिंग कॉस्ट को का पिंच महसूस कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इस प्लेटफॉर्म के द्वारा जो आपने इनिशिएटिव किया है, दिस इनिशिएटिव विल टेक बेनिफिट्स टू द इंडस्ट्री एंड विल ब्रिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ सोर्सिंग ऑफ मटेरियल्स। नाउ इस चेंज एनवायरनमेंट में जो सबसे बड़ी चीज मैं समझता हूँ जरूरत ये है, वो हो रही है हम लोगों की फाइनेंस की समस्या है। जो हमारा रोटेशन है उसमें मनी सर्कुलेशन का रोटेशन वो टूटा है, उसके चलते हुए कुछ मदद सरकार से हुई है जिसमें कि 3 लाख करोड़ का लोन प्रोवाइड किया गया है, इमरजेंसी लोन। इनिशियली 20% था, फिर बाद में 10% और ऐड किया है।
और उसमें करीब करीब अभी 3 लाख में से करीब 2.5 लाख करोड़ जो लोन ऑलरेडी लोगों ने ले लिया है। जो रिस्ट्रक्चरिंग की बात है जिसमें कि करीब 20,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है कि जो डिस्ट्रेस्ड इंडस्ट्रीज हैं वो अपना रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, उसमें मैं समझता हूँ कि कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं। तो आई वुड लाइक टू गेट सम फीडबैक फ्रॉम द इंडस्ट्री कि क्या क्या हम लोग और कर सकें ताकि उन चैलेंजेस को टेक केयर करें और जो लोग चैलेंज महसूस कर रहे हैं वो अपना आपको रिस्ट्रक्चर कर पाए। दूसरे आपने बताया कि बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि स्किल की कमी है, टेक्नोलॉजी की कमी है। ये एक नोन एरिया है और मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि इस मंत्रालय के द्वारा 18 टेक्नोलॉजी सेंटर्स चलाए जा रहे थे देश में, जो कि स्किलिंग में करीब 3 लाख लोगों को रीस्किल करते थे। अभी 15 सेंटर्स और चालू हो गए हैं, उसमें से एक रोहतक में भी है, भिवाड़ी में है, कानपुर में है, पूरे देश भर में अलग अलग जगह, चेन्नई में, नोएडा में, हैदराबाद, वाईजैक, इन सभी जगह पे ये 15 सेंटर्स और क्रिएट किए गए हैं, जिसमें करीब 100 से 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हर एक सेंटर में किया जाएगा। वहाँ पे लेटेस्ट किस्म की मशीनें हैं, 3D प्रिंटर से लेके और 7 एक्सेस 5 एक्सेस मशीन्स वगैरह सभी अवेलेबल है, ताकि स्किलिंग पे एक तो बहुत ज़्यादा इसमें हाई एंड स्किलिंग और डिजाइनिंग कैपेबिलिटी बिल्डअप करने पे काफ़ी ज़्यादा इंफेसिस दिया गया है। रोहतक वाला सेंटर अभी नेक्स्ट वीक ही ऑनरेबल मंत्री जी उसको इनॉग्रेट करने वाले हैं। हालांकि वो कुछ एक्टिविटीज़ वहाँ चालू हो गई हैं और फुल फ्लैज एक्टिविटीज़ बहुत जल्दी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा करीब 6,000 करोड़ की और एक स्कीम पारित हुई है, जिसमें कि देश भर में करीब 200 टेक्नोलॉजी सेंटर्स लगने चालू हो गए हैं। उसमें हब एंड स्पोक मॉडल में है, जिसमें कि कुछ बड़े सेंटर्स लगेंगे करीब 200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से, और उसके अलावा जो उनके डिस्ट्रिक्ट लेवल तक छोटे छोटे सेंटर्स लगाए जाएंगे। ये भी स्किलिंग, डिज़ाइन कैपेबिलिटी, इस पर इसका स्पेशल एम्फेसिस है। तो यहाँ पे एमएसएमईज जाके अपनी कोई भी समस्या ले जा सकते हैं, पर्टिकुलरली जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, क्योंकि आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरत ये हो गई कि आप अपने प्रोडक्ट को कैसे इनोवेट करें, और इनोवेशन ही एक तरीका है जिससे कि हम ग्रो कर सकते हैं। और इसमें मैं समझता हूँ कि हमारे कई सारी इंडस्ट्रीज में मैंने विजिट की, स्पेशली जो एमएसएमईज हैं, और वहाँ पे मैंने देखा कि जो नेक्स्ट जनरेशन है या यूथ इन द फैमिली जो है, वो एक अलग किस्म से इस प्रोग्राम से, इस इंडस्ट्री से जुड़ते जा रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि यूरोप में या अमेरिका में कैसे कैसे वो लोग ग्रो किए। वहाँ पे इंडिविजुअल यूथ या यंग लोगों ने कुछ कुछ नई चीज़ डेवलप की, और वो डेवलपमेंट उन्होंने इतना इन्वॉल्व होके किया कि जो इंडस्ट्री या जो बड़ी इंडस्ट्री थी, उन्होंने महसूस किया कि अगर वो अपने बढ़िया से बढ़िया रिसर्चर लगाते हैं तब भी ये काम उनके जो रिसर्चर्स हैं उतनी बढ़िया उस कॉस्ट में नहीं कर सकते। तो एमएसएमई में जो हमारे स्टार्टअप मूवमेंट के द्वारा, या जो हमारी अभी जो पूरी यूथ की जो जनरेशन है बहुत तेजी से एजुकेट होती जा रही है, बहुत जबरदस्त उसके एस्पिरेशंस हैं, और आईटी नेटवर्क के थ्रू उन लोगों ने जो नॉलेज गेन की है, जहाँ पे कि इमेंस अमाउंट ऑफ नॉलेज इज अवेलेबल, और वो उससे कनेक्ट होते जा रहे हैं। तो ये यूथ का जो एमएसएमई में अभी बढ़ावा हुआ है, मैं समझता हूँ कि ये डिसरप्शन उनके लिए बहुत यूजफुल रहेगा, और वो डिजिटल एज को बहुत तेजी से इसमें इंट्रोड्यूस कर पाएंगे और बदलाव को ला पाएंगे। तो मेरे एमएसएमई मित्रों से मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर मैं मान लीजिए 40, 45, 50 साल का एंटरप्रेन्योर हूँ और अपना काम चला रहा हूँ, तो मेरा बच्चा हो सकता है, लड़की हो चाहे लड़का हो, 15 साल, 18 साल, 20, 22 साल का, 25 साल का हो सकता है। तो मेरी सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि मैं समझता हूँ कि भाई इसको तो कुछ आता नहीं, मुझे ही सब कुछ आता है। तो मुझे अब ये सोचना है कि मैं अपने नेक्स्ट जनरेशन को कैसे अपने सिस्टम में अलाउ करूं और उसका कैसे उपयोग करूं।
अभी एक रिसेंटली बड़ा इंटरेस्टिंग ऐड आता है जिसमें कि वो मिठाई की दुकान दिखाते हैं और उसमें कहते हैं, वो पिताजी कह रहे हैं लड़के से कि भाई तुम दुकान पे बैठ के क्यों नहीं दुकान चलाते हो, लड़का कहीं और से दुकान चला देता है। तो ये एक दूसरी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। मैं जब पैसेंजर रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर हम जिन दिनों डेवलप कर रहे थे, तो मेरे लड़के ने, जो कि उस टाइम मेरे ख्याल से 4th या 5वीं क्लास में होगा, उसने मुझसे कुछ पूछा तो मैं बता नहीं पाया। तो मैंने कहा कि मैं अगले दिन बताता हूँ तुम्हें। तो इसे नहीं पापा फॉरगेट अबाउट इट, मैं अपने आप देख लूंगा। मैंने, तुम कैसे देखोगे? कहता भाई मैं गूगल पर डालता हूँ और अभी आ जाएगा। मैंने कहा अच्छा ऐसा भी हो सकता है। सो इवन व्हेन आई वाज कनेक्टेड विद द आईटी इंडस्ट्री, I was not knowing that what is possible in the sphere of knowledge gain and knowledge, retraction of the knowledge from the networks. So मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम मोर एंड मोर यूथ को जोड़ें। यूथ को अगर आप इन्वॉल्व करेंगे तो बड़ा तेजी से बदलाव आएगा। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है महाराष्ट्र में, 20 इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों को 500 इंडस्ट्री से कनेक्ट किया, एमएसएमई से। तो शुरुआत में एमएसएमई ने कहा कि साहब ये प्राइवेट कॉलेज के लड़के हैं, ये क्या करेंगे हमारे लिए, तो सब बेकार ही है। लेकिन 6 महीने के अंदर महाराष्ट्र जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज है, उन्होंने करीब अपनी 500-600 प्रॉब्लम्स वहां पे दी इंडस्ट्री की इन स्टूडेंट्स को, और उन्होंने इतने लो कॉस्ट सॉल्यूशंस क्रिएट किए कि इंडस्ट्री ने कहा साहब ये तो कमाल हो गया, ऐसा तो हमने कभी सोचा नहीं था। और सबसे बड़ी जो बात हुई कि कई सारे बच्चों ने अपने आईपीआर्स क्रिएट कर दिए, तो एक एंटरप्रेन्योर्स की दूसरी एक फौज तैयार हो गई। सो इसलिए जरूरत यह है कि हमारा जो एक बहुत ही हाई लेवल इंटेलेक्ट है, आज हम अपना इंटेलेक्ट दुनिया को बेच रहे हैं। हम 1200 R&D सेंटर दुनिया के हमारे यहाँ लगे हुए हैं। तो आज मैं समझता हूँ कि हाई एंड के जितने भी R&D इस देश में ही हो रही है, और हमारे दिमाग के बलबूते पे सारी दुनिया अपना पैसा बना रही है। तो समय ये आ गया कि हम अपने दिमाग के यूज करके अपने लिए पैसा बनाएं, दूसरे के लिए ना बनाएं। सारी आईटी इंडस्ट्री, सारा हाई एंड जितना R&D हो रहा है, सारा दुनिया के लिए हम ही लोग कर रहे हैं। एक मेरे मित्र से मैं पूछ रहा था कि इतनी हाई स्टोरी या बिल्डिंग्स बना रहे हो, क्या ये कभी कोई इसमें सारा ये भूकंप वगैरह के सब डिजाइन प्रॉपर है? ही सेड आज दुनिया की सारी डिजाइनिंग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स ही इंडिया में होती है। 80% डिजाइनिंग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की इंडिया में होती है। सो ये हमारा पोटेंशियल है। तो ये वक्त डिफिकल्ट जरूर है, लेकिन मैं जानता हूं कि एमएसएमईज जो कि हम स्ट्रॉन्ग हार्डकोर एंटरप्रेन्योर्स हैं, डिफिकल्टी हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। रोज हम डिफिकल्टीज फेस करते हैं, और हर बार डिफिकल्टी आती है तो हम उससे और चमक के नजर आते हैं। यस, वी विल ऑल वर्क टुगेदर एंड क्रिएट ए न्यू एनवायरनमेंट which will take us from $2 trillion to $5 trillion. And ये जो $5 trillion की इकोनॉमी, उसके ग्रोथ इंजन हम ही हैं, एमएसएमई हैं, बिकॉज वी आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, वी आर वेरी एंटरप्रेन्योरशिप हमारे पास हमारे खून में है। समस्याओं को हैंडल करना हमारे रोजमर्रा के काम है। मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ कि हमारा एक प्रोग्राम है, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। लास्ट ईयर 2020-21 में कोविड का जो टाइम था, हर एक जो भी हमारे इम्प्लीमेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन, सबका ये विचार था कि साहब इस बार तो ज़्यादा लोग इसमें आएंगे नहीं और ज़्यादा लोग इसका उपयोग नहीं करेंगे। लेकिन लास्ट ईयर हाईएस्ट नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स ने इसका बेनिफिट लिया, और 1 लाख लोगों को हमने लोन प्रोवाइड किया। बैंकों ने भी जो लोन प्रोवाइड करते थे, करीब 50% ग्रोथ हुई इसमें। बैंकों के द्वारा ये प्रोग्राम हमारा बैंकों के द्वारा अप्रेज किया जाता है, बैंक लोन देते हैं, हम खाली सब्सिडी देते हैं अप टू 35%। तो ये यूथ कहाँ से आया? ग्रामीण इलाकों से, सेमी अर्बन एरिया से, जिसको कि हम कहते हैं कि साहब ये लोग हमारे हिंटरलैंड के लोग हैं और शायद कम पढ़े लिखे लोग, लेकिन वहां से ये पूरी की पूरी एक इनोवेशन हो रहा है। तो आज ग्रामीण इलाकों में बहुत तेजी से हमारा बढ़ावा होता जा रहा है। तो उस पूरे मार्केट को हमें टैप करना है, वो बिल्कुल अनटैप्ड मार्केट है। मैंने ये भी महसूस किया है कि इतना जबरदस्त पोटेंशियल है कि आप अपना जो काम करने का तरीका उसमें थोड़ा सा बदलाव लाते हैं तो बड़ा जबरदस्त चीज आ जाता है। लीन की हमारी स्कीम है, लीन मैन्युफैक्चरिंग की। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि लार्ज स्केल पर आप इसका प्रचार करें आपके द्वारा, और जिस इंडस्ट्री में मैंने विजिट किया है
उन लोगों ने बताया कि सर हमारी प्रोडक्टिविटी 30 से 50% तो बड़ी आसानी से बढ़ गई है, हमारे लोगों की जो स्किल लेवल है बहुत तेजी से बढ़ गई, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी जो है 20 से 30% बढ़ गई है। सो आज की जमाना है कॉम्पिटिटिवनेस का, और कॉम्पिटिटिवनेस में हम लोग कई बार कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं कि भाई चलो अच्छा काम चल रहा है, बढ़िया बिजनेस चल रहा है, जैसा आज मैंने जिंदा किया है कल भी मैं ऐसे करने वाला हूँ, लेकिन दुनिया तो बहुत तेजी से बदल रही है और ये बदलाव का रेट जो है और तेज ही होने वाला है, तो इसको हमें तो हैंडल करना ही पड़ेगा। हमने एक दूसरा प्रोग्राम हमारा है स्फूर्ति का, जो कि क्लस्टराइजेशन के थ्रू हम लोग काम करते हैं। आज के डेट में करीब 500 क्लस्टर हमने देश भर में क्रिएट किए हैं और करीब इसमें 3 लाख से ज़्यादा लोग जो ग्रामीण और सिटीज के लोग हैं उसमें जुड़े हुए हैं, जिनको कि लोग बेनिफिट कर पा रहे हैं। और इन क्लस्टर्स में हम एंड टू एंड डिजिटाइजेशन कर रहे हैं, यानी कि मैं एग्जांपल दूंगा, मान लीजिए आप हल्दी का एक कोई क्लस्टर लगाया हमने, हल्दी के पाउडर से मेडिसिनल प्रोडक्ट्स बनाने का। तो आप हल्दी में अगर कुर्कुमिन होती है तो आप जब आते हैं तो स्कैनर लगा हुआ है, उस स्कैनर पर आपका चेक हो जाता है कि इसमें कुर्कुमिन 4% है कि 4.5% है या 5%, एंड देन यू गेट पेड अकॉर्डिंग टू दैट, एंड वट एवर यू पे आपके डिजिटल ऐप के थ्रू डिजिटल पेमेंट होता है और ऐप के थ्रू एनीबडी कैन सी कि कितना पेमेंट हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग अगेन सारी की सारी डिजिटाइज है, हर एक मशीन का आप देख सकते हैं कि मशीन का यूटिलाइजेशन कितना हुआ है, मेरे पास कितना माल रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, कितना मेरे पास फिनिश गुड पड़ा हुआ है, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन योर ऐप। सो डिजिटल वे इज द वे फॉर मूविंग फॉरवर्ड। वी हैव टू वर्क टुगेदर टू ब्रिंग इन मोर एंड मोर पीपल इन द डिजिटल स्फीयर। किसी जमाने में 80s में जब कंप्यूटर्स आए थे तो एवरीबॉडी यूज्ड टू से कि भाई क्या जरूरत है इसकी, सब तो वेस्ट ऑफ मनी है, बट आज हम देख रहे हैं कि उसकी वजह से कितना जबरदस्त फायदा हुआ है। तो इसी तरह आज ऑनरेबल पीएम ने रिसेंटली अनाउंस किया था कि देश के हर एक इलाके में डिजिटल कनेक्टिविटी हो जाएगी अगले 3 साल में। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से देश भर में डेवलप हो रहा है, डिजिटल कनेक्टिविटी, इसका हमें उपयोग करना चाहिए। और दूसरी हमारी जो क्लस्टर की स्कीम है MSc CDP, जिसमें कि अगेन इंडस्ट्री कैन जॉइन हैंड्स टू क्रिएट हाई एंड सॉल्यूशंस फॉर देमसेल्फ। जहाँ भी हम लैग कर रहे हैं, जहाँ पे हमें समझता है कि हम ये इंडिविजुअल हाई एंड की मशीनें नहीं लगा सकते, वो मशीनें हम सारी की सारी इस MSc CDP प्रोग्राम के तहत लगा सकते हैं। मार्केटिंग वगैरह की तो अलग अलग स्कीम्स हैं, वो तो आप जानते ही हैं। एक जो मैंने कहा था कि हम लोग डिजाइन कैपेबिलिटी पे हम लोग को जरूरत है कि काम करें हम लोग। जैसे आपका जो एक प्लेटफॉर्म है स्टेनलेस स्टील बाजार का कम्युनिटी, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। तो मेरा एक सुझाव है कि मान लीजिए आप ट्रैक्टर ट्रॉली बनाते हैं, गेट बनाते हैं, तो जो हमारे वर्कर्स हैं या जो हमारे MSMEs हैं वो एक ट्रेडिशनल तरीके से उसी को बनाए जा रहे हैं। अगर मेरा गेट 100 किलो का बन रहा है तो 100 किलो का ही बनेगा, बट नाउ वेरियस टेक्निक्स आर अवेलेबल जिससे कि आप उसको हो सकता है 90 किलो में, 80 किलो में, 75 किलो में इसको बना पाए। तो वो जो नए डिजाइन से उसकी बड़ी जबरदस्त कमी है, और इसी की वजह से, इसी लैग की वजह से हम लोग की कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है, और जो कई सारी चीज़ों में चाइना या इस तरह की कंट्रीज जो हैं वो हमें पीछे छोड़ दे रहे हैं। तो अगर इस प्लेटफॉर्म के द्वारा हमारे मंत्रालय को भी हम ज्वाइन कर सकते हैं, और टुगेदर वी कैन क्रिएट ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डिजाइन, फॉर बिल्डिंग डिजाइन कैपेबिलिटीज ऑफ MSMEs। हमारे मंत्रालय की एक स्कीम भी है, डिजाइन क्लिनिक स्कीम, जिसमें कि 80% तक सब्सिडी मिलती है माइक्रो यूनिट्स को। तो वो सब्सिडी का उपयोग करके नए डिजाइन क्रिएट करें, एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो अच्छे डिजाइन से वो क्रिएट करें, तो उसमें हमारा बिजनेस भी बढ़ेगा और हम लोग लो कॉस्ट सॉल्यूशंस भी क्रिएट कर पाएंगे। दूसरा PMEGP का जो हमारा वर्ड है, करीब 7 लाख यूनिट उसमें लगे हुए हैं, और मैं समझता हूँ कम से कम 50,000 यूनिट ऐसे होंगे जो कि स्टील का उपयोग कहीं ना कहीं करते होंगे। उन सब का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उनको रॉ मटेरियल की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो मेरा सुझाव ये कि अगर आप NSIC के साथ जुड़े, जो कि NSIC फाइनेंसिंग भी प्रोवाइड करती है, रॉ मटेरियल की भी सोर्सिंग करती है, तो अगर आप पर्टिकुलरली अगर माइक्रो यूनिट्स जितने हैं उनके लिए अगर अपने प्लेटफॉर्म के द्वारा वेरियस वैरायटी ऑफ स्टील के लिए अगर एक स्पेशल कॉस्ट अरेंज कर पाएं,
by contracting huge value. So then I think we'll be able to reduce the cost of raw material to the micro units particularly. ये जो मैंने एक इकोसिस्टम जिसकी बात की, जिसमें कि हम टेक्नोलॉजी सेंटर्स लगा रहे हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्रिएट कर रहे हैं, क्लस्टराइजेशन के थ्रू हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मार्केटिंग इनिशिएटिव्स कर रहे हैं, ई कॉमर्स के लिए कई सारे हम लोग काम कर रहे हैं. बट दीज आर ओनली फ्यू ऑफ द थिंग्स एंड वी थिंक दैट लॉट मोर कैन बी डन. फाइनेंशियल सेक्टर में एमएससी सीडीपी की हमारे सीईटीवीएससी की हमारी स्कीम है, जिसमें कि हम फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, गारंटी प्रोवाइड करते हैं. पर ये स्कीम्स तो ठीक है, बट इसके अलावा बहुत सारी और चीजें करने की जरूरत है. और मैं समझता हूँ अगर लगातार हम लोग काम करें और वी कैन टॉक टू ईच अदर एंड देन फाइंड इट आउट कि व्हाट आर द मोर एरियाज जहाँ पे कि हमें एम्फेसिस देने की जरूरत है. एंड सर्टेनली आई थिंक वी विल बी एबल टू वर्क टुगेदर एंड क्रिएट सॉल्यूशंस, राइट सॉल्यूशंस फॉर द एमएसएमईज, फॉर गिविंग देम बेनिफिट, फॉर मेकिंग देम कॉम्पिटिटिव, ब्रिंगिंग देम अगेन इन द मेन फोल्ड एंड टेक देम टू द नेक्स्ट हाइट्स. एक हमारा पोर्टल है, चैंपियंस पोर्टल, जहाँ पे कि एनीबडी कैन रीच एनी टाइम and bring out their problems, and then I think we'll be able to connect with that portal very, very easily. So thank you very much, and thanks again for giving me this opportunity and connecting to the MSME world. Thanks a lot. Thank you so much, sir. Thank you so much. Mr. Dev Kumar, if you can have your presentation, please. Thank you, sir. I hope it is visible, sir. Yes, it is. सभी इस प्रोग्राम के पार्टिसिपेंट्स को मेरा नमस्कार. सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स को जिन्होंने. Sorry, Dev, थोड़ा loud, please. थोड़ा सा loud. Okay, is it better, sir? Yeah, it's better. Okay, so सबसे पहले मैं सभी को मेरा नमस्कार. मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स को, जो जिन्होंने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म स्टील बाजार के नाम से शुरू किया, जहाँ पर आपने बताया कि डेली 35 से 40 क्वेरीज जिनकी वैल्यू लगभग 10 करोड़ रुपए है, वो जनरेट की जाती है. और इसके साथ में मैं सुधीर सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने एमएसएमई सेक्टर के लिए अवेलेबल जो स्कीम्स हैं उसके बारे में यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर बताया, क्योंकि ये सारी ही स्कीम्स ना सिर्फ बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं, बल्कि इनको अवेल करना भी बहुत आसान है. बट कहीं ना कहीं शायद वो एमएसएमईज जो बहुत ही, जैसे एम की बात शर्मा जी ने की, जो 1 करोड़ से नीचे वाले हैं, उनमें शायद वो इंफॉर्मेशन, वो शायद एक फियर कि क्या मैं स्कीम के लिए सीधा अप्रोच कर सकता हूँ, उस फियर की वजह से शायद अभी भी वहां पर इस स्कीम का ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई या और सरकार की सहायताएं हैं, इनका जो उपयोग है वो वहां तक, जो उनकी रीच है वो वहां तक नहीं हो पा रही है. Coming back to the presentation, I'll go through few slides, और उसके बाद मैं जरूर बताना चाहूँगा कि जीटी भारत एलएलपी, जो कि भारत की एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो कैसे इस मामले में एमएसएमईज के साथ पर्टिकुलरली काम कर सकती है, उनको सहायता प्रदान कर सकती है. शर्मा सर, जैसे आपने बात की थी कि एमएसएमईज की ये कुछ नंबर हैं जो आप ऑलरेडी बता चुके हैं, तो मैं उनको रिपीट ना करना चाहूँगा, लेकिन एक्चुअली एमएसएमई सेक्टर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी. जब हम 63 मिलियन, लगभग 6 करोड़ 30 लाख एमएसएमईज की अगर हम बात करते हैं, तो ये एक नंबर है. जब हम 11 करोड़ लोगों को बोलते हैं कि वो यहाँ पर इनका एम्प्लॉयमेंट इस सेक्टर में है, तो ये 11 करोड़ लोग सर 11 करोड़ तक सीमित नहीं है. इनके पीछे इनकी फैमिलीज, अगर हम ऑन एन एवरेज बात करें कि 2 से 3 मेंबर भी एक फैमिली में है, तो लगभग 25 से 30 करोड़ लोग किसी न किसी तरीके से एमएसएमई सेक्टर से जुड़े हुए हैं. बहुत सारे जो नए आइडियाज हैं, बहुत सारी जो नई चीजें हैं, वो इसी सेक्टर से निकल कर आती हैं. इनका कंट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात हो, एक्सपोर्ट की बात हो, जीडीपी की बात हो, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है. मैं सीधा आता हूँ. अब जैसा कि हम सभी जानते हैं, और मैं अपने एमएसएमई जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, जिन्होंने ये समय निकाला इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए, उनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि एक यूके सिन्हा कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी
under the chairmanship of Shri U.K. Sinha. It was an expert committee for MSMEs. उन्होंने जब अपनी एक रिपोर्ट बनाई, उसके अंदर उन्होंने उस कमेटी ने जब एमएसएमई सेक्टर की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, तो कुछ चैलेंजेस निकल कर आए। बहुत क्विकली मैं उन चैलेंजेस को यहाँ पर बताकर आप आगे बढ़ूंगा। उन्होंने कहा कि एमएसएमई डेफिनेशन, बहुत सारी यूनिट्स हैं जो एमएसएमई सेक्टर में होते हुए भी इस डेफिनेशन की वजह से बाहर है, जो थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई और हमारे ऑनरेबल पीएम सर, कि उन्होंने उसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए सारी रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल एजेंसीज थी उनको आगे इंस्ट्रक्शंस दिए, और जिसकी वजह से बहुत सारी जो रिकमेंडेशन है वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं, जैसे एमएसएमई डेफिनेशन। सो थैंक्स टू मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई फैसिलिटेशन सेंटर की बात है, बहुत तेजी से सर ने भी बताया कि वो बहुत तेजी से हम इसी दिशा में इसके जैसी संस्थाओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर की बात हुई, उद्यम ऑलरेडी अवेलेबल है। फंड्स जहां जहां कहे गए, जैसे जैसे फंड्स की बात हुई, वो सारे के सारे भारत सरकार ने बिल्कुल एकदम इंस्टेंटली, वो ना सिर्फ उतने ही बल्कि उससे ज्यादा फंड्स के साथ उन्होंने स्कीम्स को लॉन्च किया। नंबर्स में मैं अभी बहुत ज्यादा नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि नंबर्स जो हमारे एमएसएमई पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर डिलेड पेमेंट जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है एमएसएमई सेक्टर के लिए, जब वो किसी भी बड़े सप्लायर को अपना माल सप्लाई करते हैं, उसको एड्रेस करने की जब बात की गई, ट्रेड्स की बात की गई, ट्रेड्स में जो एजेंसीज हैं उनको आगे बढ़कर ज्यादा से ज्यादा एमएसएमईज को ऑनबोर्ड करने की बात की गई, और साथ में जो राज्य सरकारें और पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट्स, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो हैं, उनको भी ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे लाने की बात की गई, जहां पर कि एमएसएमई आकर अपना इनवॉइस बड़ी आसानी से वो लोग डिस्काउंट करा सकते हैं, तुरंत उनको पैसे की प्राप्ति हो जाती है, और उसके बाद वो इनवॉइस जो भी उसमें पीरियड डिफाइन किया गया है, उस डेफिनेट पीरियड के बाद दे कैन अप्रोच टू द बायर फॉर पेमेंट, राइट। तो अभी तक जो एमएसएमई सेक्टर बड़े सप्लाई, बड़े जो बायर्स हैं उनको सप्लाई करने में जिनको एक हर्डल आता था, या सरकार के साथ कई बार उनको ऐसा लगता था कि राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में उनका पैसा थोड़े से समय के बाद मिलेगा, तो उतना शायद वो वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट नहीं कर पाते थे। वो एक इशू इस एमएसएमई एक्ट में डिलेड पेमेंट को जो प्रमोट किया गया है, इसके जो सोल्यूशंस ऑफर किए गए हैं, उसके माध्यम से उसको एड्रेस करने की बात की गई है। सिडबी के रोल की बात उसको बढ़ाया ही गया, जिसमें राज्य सरकार के साथ ज्यादा कोऑर्डिनेशन के साथ काम करने की बात की गई, जिसके लिए सिडबी ने तुरंत उस पर एक्शन लेते हुए एक एक्सपर्ट एजेंसी, फॉर्चुनेटली वो एक्सपर्ट एजेंसी जीटी भारत एलएलपी ही है, उसके साथ में 11 राज्य सरकार के साथ एक पीएमयू एस्टैब्लिश किया। इस पीएमयू का काम वहां पर सिर्फ और सिर्फ एमएसएमई सेक्टर डेवलपमेंट के लिए काम करना है। राज्य सरकार की जो स्कीम्स हैं और जो ग्राउंड पर जो एमएसएमईज हैं, उनके बीच में समन्वय, उनके बीच में तालमेल बिठाकर भारत सरकार, राज्य सरकार की स्कीम्स को ज्यादा से ज्यादा एमएसएमई तक पहुंचाना इस पीएमयू की जिम्मेदारी है। एमएसएमई अगर हम पीएसपी लोन इन 59 मिनट्स पोर्टल की बात करें, ऑलरेडी वहां पर है। इसमें अब 5 करोड़ रुपए तक के लोन को 7 से 10 दिन में अप्रूव करने की, बैंक से अप्रूव करने की बात की गई। टेक्नोलॉजी, सुधीर सर ने बताया कि टेक्नोलॉजी आजकल हमारे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है, आप इससे बचे नहीं रह सकते। आप आज देखें तो गांव में भी अगर आप जाएं तो वहां पर भी आपको एटलीस्ट फोन पर व्हाट्सएप चलाने वाले लोग मिल जाएंगे। अगर व्हाट्सएप चलाया जा सकता है तो स्टील बाजार भी चलाया जा सकता है। जेम्स, हम जो अपनी आज तक जो हम अपनी सर्विसेज के लिए डायरेक्टली हम बायर्स ढूंढते आए, और सरकार में हम टेंडर पार्टिसिपेशन और ऐसी चीजों से हम बचते आए, एमएसएमईज से जो जुड़े हुए मेरे साथी हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि जेम्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप खुद रजिस्टर कर और अपना प्रोडक्ट डायरेक्टली सरकार को बेच सकते हैं। और फॉर्चुनेटली मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की तरफ से देयर आर गाइडलाइंस पब्लिक प्रोक्योरमेंट में एमएसएमईज के स्टेक के लिए द नंबर्स इज डिफाइंड कि आपको एक सर्टेन परसेंटेज एमएसएमई से लेना ही है। स्टील सेक्टर आई थिंक ऑलरेडी कवर्ड है, और मेरे सारे जो यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे जो साथी हैं, वो सभी स्टील इंडस्ट्री से जुड़े हैं। तो स्टील इंडस्ट्री के बारे में मैं ना चाहते हुए बहुत क्विकली अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, सुधीर सर ने ऑलरेडी बता चुके हैं, बट स्टिल 2017 में हमने ये एनसास किया कि 2030-31 तक हम 300 मिलियन टन के अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को एनहांस करेंगे। दिस इज द टारगेट विच इज सेट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, राइट। उसी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, डोमेस्टिक
प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सेव करने के लिए सरकार ने बहुत सारी ऐसी चीजें लेकर आई, जैसे उन्होंने ड्रॉबैक ड्यूटी की बात की, उन्होंने रिसाइकलिंग पॉलिसी में इंपोर्ट को रिड्यूस करने के लिए स्क्रैप रिसाइकलिंग पॉलिसी लेकर आए। जो आयरन ओर की हम बात करें, उस पर उन्होंने एक्सपोर्ट ड्यूटी की बात की। जैसा कि हम सब जानते हैं, स्टील रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी मिशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश करने की बात थी, जिसके अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेसिस पर 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इन्फ्यूज किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको ज्यादातर स्टील आइटम्स पर बढ़ा दिया, ताकि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको एक बूस्ट मिले। स्टील सेक्टर में हम सभी जानते हैं कि एक परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव भी इंट्रोड्यूस किया गया है, बट क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर जो हमारे आज के पार्टिसिपेंट्स हैं वो एमएसएमई सेक्टर से हैं, तो उस पर बहुत ज्यादा ना आते हुए मैं सीधा जो एमएसएमई सेक्टर से रिलेटेड चीजें हैं मैं उन पर जाता हूँ। ग्रांट थॉर्टन भारत एलएलपी की अगर बात करें तो ग्रांट थॉर्टन भारत एलएलपी एक एफिलिएटेड एक पार्ट है ग्रांट थॉर्टन ग्लोबल का, जिसमें लगभग 60,000 लोग ग्लोबली अगर मैं बात करूं काम करते हैं, और लगभग 140 से ज्यादा कंट्रीज में इस ग्रांट थॉर्टन का बेस है। इंडिया में अगर मैं बात करूं तो लगभग 4,500 लोगों से ज्यादा 15 ऑफिसेज में इंडिया के सारे पार्ट्स में, ये हमारे अपने ऑफिस है। इसके अलावा जो हम क्लाइंट साइड पर हमारे या जो हमारे टीम मेंबर्स के प्रेजेंस है, वो मैं अगर कहना चाहूं तो शायद देश की एक स्टेट को छोड़कर हर स्टेट में है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, चाहे वो नीति आयोग हो, केंद्रीय सरकार हो, राज्य सरकार हो, स्किल डेवलपमेंट की बात हो, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की बात हो, डिजिटल इंडिया की बात हो, सिडबी जैसी संस्था है जो सिर्फ एमएसएमई सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है। हमारे पास आज सिडबी से भी एक पैनलिस्ट हैं। सो ऐसी सभी संस्थाओं के साथ जीटी भारत एलएलपी जुड़कर काम कर रहा है और अपनी सर्विसेज एमएसएमई सेक्टर तक देने की, उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे क्लाइंट हमारा जो क्लाइंट मैं कहूंगा जो हमें हायरिंग एजेंसी है, चाहे वो राज्य सरकार है, केंद्रीय सरकार है, या जो इस तरह की मल्टीलेटरल बायलेटरल इंस्टीट्यूट्स है जैसे वर्ल्ड बैंक, एडीबी, यूनिडो, यूएनडीपी, बट उन सभी का एक ही मोटिव है कि वो एमएसएमई सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए इनिशिएटिव्स लिए जाएं, और जिसके लिए एक एक्सपर्ट एजेंसी की तरह जीटी भारत एलएलपी काम करता है। इसी के साथ मैं स्पेसिफिकली बताना चाहूंगा कि जीटी भारत एलएलपी एमएसएमई सेक्टर के साथ डायरेक्टली भी जुड़कर अगर हमारी सर्विसेज से हम उनको बेनिफिट पहुंचा सकते हैं, वहां भी हम उनके साथ काम करते हैं। अगर मैं एमएसएमई सेक्टर को सर्विसेज की बात करूं तो चाहे वो मार्केट कंपटीशन या कमर्शियल ड्यू डिलिजेंस हो, अगर आप किसी दूसरी यूनिट को एक्वायर करना चाहते हैं, जो ये मीडियम और स्मॉल सेक्टर यूनिट्स हैं, राइट, अगर वो कोई प्राइवेट इक्विटी देखना चाहते हैं किसी बायर का, किसी सेलर का या किसी वेंडर का, अगर ड्यू डिलिजेंस है, वैल्यूएशन सर्विसेज अगर हैं, ऑडिट से रिलेटेड अगर आपकी सर्विसेज हैं, अगर आपको रिफॉर्म्स के लिए कोई एडवाइजरी सर्विसेज चाहिए, टैक्स से रिलेटेड सर्विसेज, मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ एमएसएमई सेगमेंट की। इवन अगर एमएसएमई सेगमेंट के लिए वी आर लुकिंग फॉर टैक्स रिलेटेड सर्विसेज, सो वी आर देयर। गवर्नमेंट की अगर कोई स्कीम का लिवरेज है, कोई इंसेंटिव सब्सिडी के लिए, इफ यू आर लुकिंग फॉर एनी हेल्प और सपोर्ट दैट फ्रॉम a small micro unit who is looking for a mere finance from a financial institution or from organized sector credit player, to a medium unit who is looking for merger and acquisition, we are catering the whole gamut. जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिडबी एमएसएमई पीएसयू पीएमयूज जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट सिडबी के साथ मिलकर जीटी ने एस्टैब्लिश किया है, वो देश के 11 स्टेट्स में है, जिसमें लगभग अगर हम पूरे देश की बात करें तो लगभग 56% एमएसएमईज इन्हीं स्टेट्स में है। लगभग 62% कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इन्हीं स्टेट से आती हैं। बहुत तेजी से मैं इस स्लाइड पर मैं थोड़ा सा टाइम लेना चाहूंगा, इसलिए मैं बहुत तेजी से अपनी पुरानी मैंने स्लाइड्स को खत्म किया। देखिए, जब सर मेरे सारे जो एमएसएमई पार्टिसिपेंट जब यहाँ पर मौजूद है, मैं उनको बताना चाहूंगा, जैसा कि सुधीर सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि आज का टाइम डिजिटल जमाने का है। आज के टाइम में अगर आप आज के समय में अगर आप डिजिटल सॉल्यूशंस को तवज्जो नहीं देते हैं, अगर आप डिजिटल सॉल्यूशंस की ऑफरिंग्स पर नहीं जाते हैं,
तो बहुत हद तक उम्मीद है कि शायद आप अपने क्लाइंट्स को, अपने बायर्स को वो सर्विसेज ना दे पाए जिस सर्विस की एक्सपेक्टेशन वो आपसे रखते हैं। आपको अगर अपना प्रॉफिटेबिलिटी या अपना बिजनेस बढ़ाना है, उसके दो ही सिरे हो सकते हैं। या तो आप कुछ ऐसा निश क्रिएट करें कि आपकी सर्विस के लिए, वो आपकी सर्विस या आपका प्रोडक्ट अगर आपका दूसरा कॉम्पिटिटर नहीं दे पा रहा है, तो बायर्स आपके पास आएंगे। वहां पर आप थोड़ा सा प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं। अगर आपका कोई निश प्रोडक्ट है, वो निश प्रोडक्ट मैं ही बना सकता हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं बना सकता, और उस केस में बहुत हद तक पॉसिबल है कि बायर मेरे पास आएगा, बायर को क्योंकि उसी प्रोडक्ट की डिमांड, उसी प्रोडक्ट की जरूरत है। बट अगर मेरा प्रोडक्ट ऐसा है जो मेरे कॉम्पिटिटर्स भी इजीली प्रोवाइड करा सकते हैं, देन इन दैट केस आई विल हैव टू वर्क ऑन द कॉम्पिटिटिवनेस। या तो मुझे अपनी कॉस्ट घटानी है या मुझे अपना प्राइस बढ़ाना है अपने मार्जिन के लिए। प्राइस मैं बढ़ा नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे जो कॉम्पिटिटर हैं वो ऑलरेडी एक प्राइस लिमिट के साथ बैठे हुए हैं। अगर वो उस प्रोडक्ट को 100 रुपए का दे रहे हैं तो सिमिलर प्रोडक्ट मैं 101 रुपए का नहीं दे सकता हूँ। एट द सेम टाइम मुझे क्या करना होगा, मुझे कहीं ना कहीं अपनी जो कॉस्ट है उसको नीचे लाना होगा, तभी मैं अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकता हूँ। और अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ तो शायद मैं उसका अगर कुछ हिस्सा, मैं उससे 100 रुपए के प्रोडक्ट को अगर मैं 99 रुपए 80 पैसे पर ले आता हूँ, तो वो 20 पैसे के लिए मैं बाहर को अट्रैक्ट कर सकता हूँ। वो ये जो कॉस्ट को कम करने के सोल्यूशन है कहाँ से आएंगे? ये कॉस्ट कम करने के जो सोल्यूशन है वो ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से आते हैं। कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के नाम यहाँ पर हमने दिए हैं। ये मैंने एक केस स्टडी लिया था जहाँ पर हमने इस तरह की सर्विसेज एक पर्टिकुलर क्लस्टर में दी थी। जो ये सर्विसेज प्रोवाइडर हैं, हम इनको बिजनेस डेवलपमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स बोलते हैं। ये फिजिकल भी हो सकते हैं, डिजिटल भी हो सकते हैं, और ये इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग भी हो सकते हैं। अगर मैं एक बहुत छोटी यूनिट की, जैसा शर्मा जी ने इंडिकेट किया था कि बहुत बड़ा जो सेगमेंट है वो 1 करोड़ से नीचे वाला है, बिल्कुल आपकी बात सही है सर। वो 1 करोड़ से नीचे वाला जो सेगमेंट है उसके लिए कई ऐसी सर्विसेज हैं जो वो अपने रोजमर्रा की जो ऑपरेशन है उसमें तो यूज नहीं करता, लेकिन ऐसे अगर वो सर्विस प्रोवाइडर्स को हायर करे जो, जैसा सर ने बताया, लीन मैन्युफैक्चरिंग की स्कीम को लीवरेज करने के लिए अगर वो किसी एक्सपर्ट की सहायता ले और वो एक ग्रुप में साथ होकर आए और क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर में वहां पर अप्रोच करें, तो उससे ना सिर्फ उनको लीन मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड बेनिफिट्स उठा सकते हैं, वरन उसके साथ अगर आप देखें तो उससे वो अपनी कॉम्पिटिटिवनेस, अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को नीचे लेकर आ सकते हैं, अपनी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा सकते हैं, और अब उसका थोड़ा सा मार्जिन, उसका थोड़ा सा एक हिस्सा वो बायर को पास ऑन करके अपनी सेल्स में भी इजाफा कर सकते हैं। ये जस्ट एक एग्जांपल है। इसी तरीके से हम बात करें स्किल डेवलपमेंट की, मार्केटिंग सपोर्ट की, लीन मैन्युफैक्चरिंग की, या प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट की, या इनफैक्ट आपके जो बिजनेस को करने का तरीका है उसमें रिफॉर्म्स की, इनफैक्ट पे और अकाउंट्स की, इन सभी के लिए हमारे पास आज की डेट में ई सोल्यूशन, और ई सोल्यूशन के साथ साथ हमारे पास ऐसी स्कीम्स अवेलेबल हैं जो ऑलरेडी इनफैक्ट वो पब्लिक डोमेन में ऐसी स्कीम्स अवेलेबल हैं जिनका कि लाभ उठाया जा सकता है। लेकिन वो क्या चीजें हैं जो ऐसी स्कीम का लाभ उठाने से हम लोगों को रोकती हैं, या हम लोगों को वो स्कीम का लाभ उठाने में वो एक हर्डल आती है? वो है एसिमेट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, उसकी पर्टिकुलर जानकारी ना होना। हमारे जो ज्यादातर एमएसएमईज हैं वो वेरी राइटली सर मेंशन, वो C2C कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, फ्रॉम चपरासी टू चेयरमैन। इट इज वेरी ट्रू, बट हमें ये भी समझना होगा कि सारा काम हम शायद अपने आप नहीं कर सकते हैं। हमें कहीं ना कहीं काम करने के लिए सपोर्ट की आवश्यकता होगी, और उसके लिए हमें कुछ एडवाइजरी सर्विसेज की आवश्यकता होगी। कई बार ऐसा होता है कि हम एक सेट पैटर्न पे हम अपनी यूनिट चलाते चले जा रहे हैं, बहुत अच्छा है, हम एक सेट प्रॉफिट्स कमाते चले जा रहे हैं, लेकिन मार्केट बहुत तेजी से बदल रही है। जो मार्केट बहुत तेजी से बदल रही है, उस तेजी से बदलती मार्केट के अंदर हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमें भी उसी पेस से उसको टैप करना होगा। अगर हम वो उस मार्केट के चेंजेस को अगर हम टैप नहीं कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हम पीछे छूट जाएंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स, जैसे मैं नाम लूंगा, नोकिया, हम शायद बहुत अच्छे से, शायद नाम से ही सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर है, कहां से कहां तक। उसी तरीके से, क्योंकि शायद उन्होंने जो मार्केट में बहुत तेजी से नई चीजें आ रही थी, उन्होंने उसको अडॉप्ट करने की कोशिश नहीं की। वही सेम प्रिंसिपल हम एमएसएमईज पर भी लागू होता है। अगर हम ये कहें कि मेरे बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी घट रही है, तो उसका एक ही रीजन हो सकता है कि शायद मार्केट में मेरे कॉम्पिटिटर्स और जो चीजों को अडॉप्ट कर रहे हैं, शायद मैं नहीं कर रहा हूँ। SteelBazaar.com, स्टील बाजार जो ऐप है, वो उसका एक बहुत जीता जागता उदाहरण है कि किस तरीके से एमएसएमईज अगर एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं, तो ना सिर्फ वो बेनिफिट्स अर्न कर सकती हैं, बल्कि वो पॉलिसी एडवोकेसी के रूप में भी
वो अपनी जरूरतों के लिए जो डिफरेंट पॉलिसी मेकर्स हैं उनको अप्रोच कर सकती है। ये जो सारी सर्विसेज की मैंने बात की, ये एक जो एमएसएमई सेगमेंट में जो लगभग 5 या 10 करोड़ से नीचे ऑपरेट कर रहे हैं उनके लिए है। अब अगर मैं बात करूं कि जो 10 करोड़ से ऊपर हैं यूनिट्स, या अगर बहुत छोटी यूनिट्स भी है जो 10 करोड़ से नीचे या 5 करोड़ से नीचे के सेगमेंट की भी आती हैं, लेकिन अगर वो इकट्ठे होकर आती हैं तो देयर आर क्लस्टर स्कीम्स अवेलेबल। आपको सिर्फ अपनी एक एसोसिएशन, एक एसपीवी को फॉर्म करना है जिसमें आप ही की तरह के लोग हों और जिनका एक कॉमन उद्देश्य हो कि जिन्हें किसी सर्विस की जरूरत हो। देयर आर एडवाइजरी सर्विसेज अवेलेबल विद जीटी भारत एलएलपी उनको सपोर्ट करने के लिए। देयर आर एम्पल नंबर ऑफ स्कीम्स अवेलेबल फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फ्रॉम वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स, जिससे कि वो उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। सो देयर आर डिजिटल सॉल्यूशंस अवेलेबल, जिसका जिस तक अगर उनके साथ कोई लिंकेजेस की बात है या अगर उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म के और लाने की बात है, वो भी काम जीटी भारत एलएलपी एमएसएमई सेगमेंट के लिए कर सकता है। टैक्सेशन की बात है या आपके लिए कोई एडवाइजरी सर्विसेज की बात है, दैट आल्सो कैन बी ऑफर्ड। जरूरत है तो सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग एक डेवलप करने की कि सारा काम शायद मेरे लिए कर पाना मुश्किल है, और अगर मुझे किसी पर्टिकुलर सर्विस में अगर मुझे ऐसा लगता है कि वो सर्विस का साइज बड़ा हो सकता है, तो मुझे अपने जैसे लोगों को साथ में जोड़कर लाने की जरूरत है, ताकि इसी तरह की सर्विसेज जो बाकी मीडियम और लार्ज स्केल की इंडस्ट्रीज लेती हैं, वही सर्विसेज मैं अपने एक माइक्रो और स्मॉल सेगमेंट की यूनिट में भी ले पाऊं। These are the various office addresses. Now I rest my presentation here. Thank you to all the participants. Thank you, Dev, so much, and we will make sure the contact details we are going to publish and spread out to everybody who is interested, and I'm sure a lot of people are interested. So I'll hand it over the next presentation to Mr. Saurabh Bajpayee. He's the AGM, SIDBI, and over to you, Mr. Bajpayee. Thank you, sir. Thank you, sir. Hope my presentation is visible to each and everyone. Absolutely. Yeah. So, sir, I will start with the things which Sharma ji left. Sharma ji told that there are many problems are there. इसमें सबसे बड़ी problem शर्मा जी ने बताई थी, that is जागरूकता and पहुंच. सर ने वहां से start किया था. So I will say, in fact, whenever you think about the MSME, SIDBI is always there. Right now I'm posted in promotion development vertical. तो मैं जागरूकता से start करता हूँ कि जागरूकता के लिए SIDBI ने क्या किया है. In fact, you must be aware about they have also discussed psbloan59minutes.com, and another is the Udyami Mitra vertical, Udyami Mitra portal, which we have developed. तो सर उद्यमी मित्र हमने एक ऐसी पोर्टल बनाई है, जैसे आप एमएसएमई स्कीम्स के बारे में सोचते हैं, व्हाट आर द स्कीम्स अवेलेबल फॉर द एमएसएमईज. So this portal is there, this ecosystem is there, where we will say that all the schemes which are available for the MSME should be available on this portal. So here in fact for the Udyami Mitra, we have added 400 lenders are there, more than 24,000 handholding agencies are there, and more than 1.5 lakh branches of the banks are with this portal. Besides, not only this funding things, in fact, all the awareness, like if you are going on the home page, सबसे पहले समृद्धि chatbot आता है. So there we have provided whatever the queries are there, आप उनसे वहाँ पे help ले सकते हैं. Then PM Swanidhi is one of the thing which we have also started with Udyami Mitra. PM Swanidhi में आप लोग जानते हैं कि 10,000 जो तक के loans जो हैं, that we have started with this thing. Mudra is there, then Stand Up India is also with the Udyami Mitra portal. MSMEs की जितने भी आपके पास informations हैं चाहिए आपको, वो हमने यहाँ से start किया. Then performance link incentives scheme for telecom and pharma sector also started है. जैसा भी आपको मालूम है कि PLI scheme steel sector में भी आ रही है, so उससे पहले telecom and pharma में आई थी, that we covered from this thing. Credit guarantee के लिए आपके चीजें knowledge जो है knowledge base वो यहाँ पर available है. Then CSC also we started this thing, that is totally separate from the MSMEs, that I will not cover here. Then sir, one thing is जागरूकता, another is पहुंच.
पहुंच के लिए सिडबी ने psbloan59minutes.com स्टार्ट किया है। वहाँ लाइक ऑल ऑफ आर अवेयर कि 59 मिनट्स में आपको जो है लोन का इन प्रिंसिपल सैंक्शन इसमें आपको मिल जाता है। देयर 1000 डेटा पॉइंट्स आर बीइंग यूज्ड। आधार आपने इसमें हमने लिंक किया है, एनएसडीएल लिंक किया, सरसाई, टैक्स एंड ऑल द थिंग्स which can be think of are there, so that it can be very fast disposal of the loan application. 4400 plus customized solutions हमने इसमें दी हैं। More than 18 public sector and private banks are with this portal. 86,000 से ज्यादा branches जो हैं they are connected. Earlier the TAT was higher, but now the TAT has also been reduced to 10 days. In fact, less than 10 days I will say. सर इसमें मतलब इनफैक्ट ऑलरेडी जो है अभी तक पीएसबी लोन के थ्रू मोर देन 86,000 करोड़ की 80,000 करोड़ की जो एप्लीकेशन है वो सैंक्शन और हो चुकी हैं। 3.2 लाख से ज्यादा लोन्स इसमें सैंक्शन हो चुके हैं एंड मोर देन 70% हैव बीन डिसबर्स्ड टिल नाउ। देन थर्ड थिंग आई वुड लाइक टू कवर, जो सर ने बोला है, गर्ग सर ने बोला है कि डिजिटल, वी हैव टू गो फॉर द डिजिटल इंडिया। So we are still planning and we are trying our best कि ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशंस, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हम लोग MSMEs को दे सकें थ्रू दीज पोर्टल्स। Simultaneously, one more thing I would like to mention here, जो गर्ग सर ने बोला था, that is the youth to be involved. So from the P&D promotion development vertical, we have initiated a very good campaign, that is the हर घर एक स्वावलंबी। तो इस कैंपेन में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर घर में एक स्वावलंबी क्रिएट किया जाए। उसके लिए जितने जागरूकता के प्रोग्राम्स हो सकते हैं, सिडबी इज ट्राइंग टू डू फ्रॉम आई विल से लेह लद्दाख टू केरला इन थ्रिसूर। यूथ को कनेक्ट करने के लिए हम लोगों ने अभी एक नया साहस प्रोग्राम स्टार्ट किया है, दैट इज द हार्नेसिंग एस्पायरिंग स्वावलंबीज। उसमें वी हैव स्टार्टेड विद इनिशियली विद द गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज थ्रिसूर। So there Thrissur, what this GEC will do, this government engineering college will do means basically an MSME chair has been established there. So this chair is totally different from the normal chair. Normal chair में आप research करते हैं, publications करते हैं. So what the concept we have given here is that this chair means the institutes, the students and the professors of this government engineering college, they will provide solutions to the MSMEs. Means MSMEs wherever they have any issues, like मान लीजिए कोई MSME कोई प्रोटोटाइप डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, he is finding some problems there, because these engineers and the professors, they have expertise in the engineering, so he can go there, he can tell them problem, and then the GC students or the aspiring entrepreneurs which are attached with this chair will help them. Similarly, these students and professors will also go to the clusters. So this was the first one which we have recently, the MSME chair is established in GEC 3. So we are planning for other institutes also. This will in fact motivate the youths also. Like I told कि हमारा target है हर घर एक स्वावलंबी, तो उसमें youths भी inspired होंगे, and not only they will they will help with other MSMEs, but they will also try to become स्वावलंबी. Sir, this is the hand-holding ecosystem of the Udyam Mitra portal. We have already hand-holding agency requests are more than 58,000. Total disbursements जो अभी तक loan applications आ चुकी हैं 42 lakhs applications आ चुकी हैं, and more than 21.5 lakhs have been disbursed, and more than 27 lakhs have been sanctioned. Then sir, this is the like if we are going for the digital, so for the digital ecosystem what SIDBI has done, this I will come here. PM Swanidhi जो street vendors वाली scheme है, that we are running through our portal, जिसमें 10,000 rupees तक के loans sanction किए जा रहे हैं. Then more than 24 lakhs, in fact, then will 24 lakhs already sanction हो चुके. Then we'll come to the Stand Up India portal. Stand Up India में जो है, that is we are providing credit facilities for SC, ST and women. The Government of India scheme. So SIDBI is managing this portal. Then Udyami Mitra I already discussed with you all. Then similarly there are other portals for the animal husbandry and dairy department.
PSB loan we have already discussed, and in fact I will request all the MSMEs friends which are on this platform, आप आइए, PSB loans is a very good platform. वहाँ पे आप अपनी लोन्स जो रिक्वेस्ट है, क्योंकि देखिए द थिंग इज कि आपको एक ऑप्शन मिला हुआ है, यू कैन चूज इट. आपके पास वहाँ पे हर बैंक की हर स्कीम के बारे में नॉलेज मिलेगी. आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आप अपनी रिक्वायरमेंट डालिए, जिस बैंक की जो स्कीम आपको अच्छी लगती है आप उसके लिए अप्लाई कीजिए. टॉप आप एनी 3 बैंक्स कैन बी चूजन देयर. वो जो 3 बैंक्स के पास आपकी एप्लीकेशन पहुंचेगी, तो दोज 3 बैंक्स कैन डू दिस इन प्रिंसिपल सैंक्शन, जहां भी आप चूज करते हैं जिस ऑर्डर में. सो इट्स अ वेरी गुड पोर्टल, टेक एडवांटेज ऑफ दैट वन. एंड देन MSME Saksham is also there, which is a knowledge based portal. Like I told के कोई भी, जैसे आप, अगेन मैं जागरूकता की बात करता हूँ जो शर्मा जी ने सबसे पहले बोला था. मान लीजिए कोई एक एंटरप्रेन्योर, बीइंग एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर है, जैसे आपका यूथ है, कोई चीज स्टार्ट करना चाहता है. जैसे सर ने बोला कि हमें नहीं पता होता है कि व्हाट द थिंग्स वी रिक्वायर टू इनिशिएट अ वेंचर और अ न्यू एंटरप्राइज. So you will get all the informations here. आपके पास कोई आइडिया है, आप आइडिया लाइए, दीजिए आप आइडिया, इस पे डालिए. देन दिस पोर्टल कैन हेल्प यू आउट कि विच स्कीम विल बी अवेलेबल फॉर यू. अभी आपको सारा डेटाबेस मिलेगा इसमें कि हाँ इस सेक्टर में आपके लिए बेनिफिशियल है जाना. आपको सारी जानकारी मिलेगी कि आपको स्टार्ट कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे कराने हैं, उद्यम रजिस्ट्रेशन आपको चाहिए तो कैसे चाहिए, SSI आपको बनना चाहते हो तो आप किस कैटेगरी में. सो दिस इज अ गुड डेटाबेस एंड गुड नॉलेज सिस्टम विच ऑल ऑफ यू एंड एन एस्पायरिंग स्वावलंबी आई विल से कैन यूटिलाइज. Then sir, CGTMSE sir ने already discuss किया था, Garg sir ने भी. CGTMSE is a very good scheme. In fact, we have enhanced it from 1 lakh to 1 crore to 2 crore. Then retail भी हमने start कर दिया इसमें. Retail traders are up to 1 crore is also being covered there. It's doing really well. ECLGS scheme already NCGTC Associate Concern of SIDBI is helping that out. We are providing this guarantee support. So the government is doing very well. In fact, PLI scheme like they have mentioned, दो PLI अभी जो PLI आपके स्टील सेक्टर के लिए लेकर के आ रहे हैं, तो PLI is very good. Of course, it's not for the MSMEs, small MSMEs, but I will say कि अगर मान लीजिए एक बड़ा सेक्टर बनता है तभी MSMEs भी डेवलप होते हैं, एंसिलरीज डेवलप होती हैं. So it can be utilized there. मतलब definitely 6,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट बैंक गवर्नमेंट कर रही है. So that will be beneficial for all. So I will raise my presentation here. Thank you all. Thank you, Mr. Vajpayee. It was really, really nice. And as you know, I told Mr. Dev also, we will spread your contacts, and anybody who wants to contact you can do that later. So Mr. Rajiv Bajaj, Director PNB, regarding his experience on stainless steel cluster. Let's have your presentation. या राजीव जी. नमस्कार सभी मेरे व्यापारी भाइयों को बहुत बहुत नमस्कार. और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ स्टेनलेस स्टील बाजार का ऐसा एक आयोजन रखने का, जिसमें हमने जो किया उसका मैं एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ सबसे, और मैं अपने सभी व्यापारी भाइयों की मैं मदद कर सकूं, जो भी मेरे से सक्षम हो सके मैं उसमें पूरा प्रयास करूंगा. मैं धन्यवाद करूंगा सुधीर गर्ग जी का, जो जॉइंट सेक्रेटरी साहब का, और गिविंग एजुकेशन अस ऑन द अदर MSME स्कीम्स. और मैं माई सेल्फ इज राजीव बजाज फ्रॉम श्री शक्ति एंटरप्राइजेस, जो कि वी मेक अबाउट स्टेनलेस स्टील एंड किचनवेयर एंड हाउसवेयर प्रोडक्ट्स अंडर द ब्रांड नेम ऑफ PNB किचनवेयर. आज से कुछ समय पहले एक हमारे पास हमारे डायरेक्टर इंडस्ट्रीज मिस्टर TL सत्यप्रकाश जी ने हमारे को एक गाइडेंस दी इस स्कीम के बारे में, जो MSME CDB स्कीम है. राजीव जी थोड़ा सा लाउड इफ यू कैन. थैंक यू. ओके, इज बेटर नाउ? परफेक्ट. ऑलराइट. डायरेक्टर इंडस्ट्रीज थे हमारे TL सत्यप्रकाश जी, जिनकी संरक्षण में हमने ये शुरू किया. और कुछ हमारे जो को डायरेक्टर्स मिस्टर पवन कंसल जी और सुधीर कुमार जी और बाकी सब मेंबर्स ने मिलके एक थॉट प्रोसेस को अंजाम देना शुरू किया
कि हम एक क्लस्टर का प्रोजेक्ट करते हैं, इससे कि हम सब में साहस आया। जैसा कि विजय शर्मा जी ने कहा, साहस नहीं छोड़ना चाहिए, साहस को बरकरार रखते हुए हमने ये शुरू किया और हमें खुशी है इस बात की, हम उस मुकाम पे शुरुआत कर चुके हैं और जल्दी क्लस्टर पूर्ण रूप से चालू हो जाएगा। उसमें से कुछ मशीनें चालू भी हो चुकी हैं। मैं बहुत ही संक्षिप्त में आपको इस स्कीम के बारे में पूरा एक प्रतिक्रिया बता देता हूं कि क्या प्रतिक्रिया है इसको काम करने की। वैसे एमएसएमई की बहुत सारी स्कीम्स हैं जो हमारे लिए बहुत फैसिलिटेट करती है हमारे को, और उसमें से ये वन ऑफ द बहुत बेहतरीन स्कीम है एमएससी सीडीपी स्कीम। बेसिकली आज हमारे को, हमारे व्यापारी भाइयों को जो सबसे बड़ी तकलीफ है वो है कि नई इन्वेस्टमेंट करना। हमें वही बर्तन बनाना है, मगर हमारे में वो जज्बा नहीं होता कि हम और पैसा लगाएं इस व्यापार में। और वो जज्बे को प्रेरित करने के लिए एमएसएमई ने स्कीम दी कि पैसा हम देंगे, मशीन हम देंगे, जज्बा आप रखो, जो बहुत सराहनीय है। उसी के तहत ये स्कीम मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आई विल शेयर माय स्लाइड। एमएससी सीडीपी स्कीम का कैमरा नहीं है जीतू जी, यानी आई एम नॉट एबल टू सी। No, so you need to click on the presentation. Ashok, can you help? Can you see the presentation now, sir? So we cannot, so you need to share the presentation. You need to click on the presentation to share it. All right. जो presentation है उसके बाद click. All right. One moment, जी। शेयर पे मोर पे शेयर पे राजीव, आप ऐसे ही कर सकते हैं। एक मैं लास्ट ट्राई करता हूँ, अगर नहीं हुआ तो फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। जो काम आप रोज करते हैं वही बोलना है बस। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। अगर एक बारी ये राजीव और सुधीर का जो है ना डेडिकेशन है, जो कि आज हम ये क्लस्टर डेवलपमेंट का कुंडली स्टेनलेस स्टील क्लस्टर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जो है कर पाए हैं, और इसके अंदर हमें सक्सेस मिली है। और मेरे ख्याल से स्टेनलेस स्टील का पहला जो है ये सीएफसी है, जिसके अंदर की नई टेक्नोलॉजी भारत सरकार के द्वारा हमें दी गई है, और भारत सरकार की हेल्प से हम लोग ये कर पा रहे हैं। तो एक विश्वास पैदा होता है कि हम सरकार की हेल्प से भी खूब सारे बड़े बड़े काम कर सकते हैं। हाँ राजीव सर, हाँ राजीव, आपको वहां पे ऊपर न्यू सर पे क्लिक करना है और वहां पे स्क्रीन लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पे, उस पे क्लिक कीजिए। ओके, No, we can see your screen now. Just open the presentation. Sir, open the presentation. Yes, sir. Thank you, sir. Good. Now, sorry for the inconvenience to everyone. Basically, MSc CDP स्कीम जो है क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसमें बेसिकली हम किसी भी भाई को, कोई हमें मशीन लगानी है, कोई भी चीज हम लगाना चाहते हैं और हम सोचते हैं कि हम अकेले उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, और या हम अकेले उसको पूरी सक्षमता से चला नहीं सकते। मान लीजिए मैं कोई मशीन लेने चाहता हूँ, उसकी कॉस्ट 5 करोड़ रुपए है और मेरे को वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, और बाकी किसी भाई को भी वही मशीन चाहिए, दूसरे भाई को भी वो मशीन चाहिए, तो हम कॉमनली उस मशीन को एमएससी सीडीपी स्कीम के अंदर डाल सकते हैं। एमएससी सीडीपी स्कीम का जो प्रोजेक्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 20 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें एसपीवी का शेयर 10% है। Am I audible, sir? Yes, yes. यस। एसपीवी का जो शेयर है वो 10% है, स्टेट गवर्नमेंट का जो स्टेक है वो 20% है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रीब्यूशन करती है 70%। मींस 20 करोड़ में से जो 14 करोड़ की मशीनें हैं
वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे को सपोर्ट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट हमारे को 4 करोड़ पे एक्सपोर्ट करेगी और हमें सिर्फ 2 करोड़ पे ही लगाने हैं। ये पहले जो प्रोजेक्ट था ये पहले 15 करोड़ का था, बाद में ये एनहांस होके ये 20 करोड़ का हो गया। बेसिकली क्लस्टर क्या है? क्लस्टर है एक ग्रुप ऑफ इंटररिलेटेड इंडस्ट्रीज। इस पे हमारी कोई भी कॉमन प्रोडक्ट्स या कॉमन चैलेंजेस या सिमिलर टेक्नोलॉजीज, हम इन तीनों में से कोई भी एक चीज अगर हमें चाहिए तो उसके लिए वी बिकम अ क्लस्टर। जैसे मैंने बताया कि एग्जाम्पल ले लीजिए कि हम CNC स्पिनिंग मशीन चाह रहे हैं और वो हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे महेंद्र के या बाकी भाई सब मिलके 10 भाई मिलके उसको एक 20 लोग मिलके क्लस्टर बनाएं और उस मशीन को क्लस्टर में प्रपोज करें। I'll go ahead with more details. How to make a cluster? How many members are required to form a cluster? Basically कम से कम हमारे को 20 मेंबर्स चाहिए, 20 कंपनी चाहिए जो उद्योग आधार रजिस्टर्ड हो, MSME रजिस्टर्ड, और मिनिमम 20 हो, इट कैन बी more than that. The next process remains is एक डायग्नोस्टिक स्टडी रिपोर्ट बनेगी जो हमारी आइडेंटिफाई करेगी कॉमन प्रॉब्लम्स। कॉमन प्रॉब्लम्स क्या है? हमारी कोई टेक्नोलॉजी हमें चाहिए, वो हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, 5 करोड़ की मशीन है, 8-10 करोड़ की मशीन है, या कोई रॉ मटेरियल बाइंग है, बल्क बाइंग है, या कोई मार्केटिंग या स्किल्स, इन सब के ऊपर हम पहले एक डायग्नोस्टिक स्टडी रिपोर्ट बनेगी। उस डायग्नोस्टिक स्टडी रिपोर्ट के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, उस स्टडी रिपोर्ट को प्रैक्टिकलिटी में क्या उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी कि वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कि हमें क्या वायबिलिटी है, हमें कितनी लैंड चाहिए, कितनी बिल्डिंग चाहिए, कितनी प्लांट एंड मशीनरी चाहिए, कितने फिक्स एसेट्स चाहिए, क्या हमारे प्रीलिम एक्सपेंसेस होंगे, क्या हमारे प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस भी होंगे जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, एवरीथिंग। देन वी हैव टू ऐड कंटिजेंसीज एंड द वर्किंग कैपिटल मार्जिन मनी। ऑल दैट हैज टू बी वेल डिफाइंड कि हम ये प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, इस प्रोडक्ट को बनाने के बाद हमें इकोनॉमी में क्या फायदा हम पहुंचाएंगे। मान लीजिए हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, आज हम कंज्यूमर को प्रोडक्ट दे पा रहे हैं 100 रुपए का, और MSME की स्कीम के तहत अगर हमारे को प्लांट एंड मशीनरी सपोर्ट मिल गया है तो हमारी सिर्फ वर्किंग कॉस्ट ही है उसके अंदर, तो वी कैन रिड्यूस द कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमें नहीं लगाना पड़ा, उससे हम अपने कस्टमर को पास ऑन कर सकते हैं या उससे और बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट बना सकते हैं टू सर्व आवर नेशन एंड टू आवर पीपल। देन देयर इज अ प्रोसेस जो हम DPR बनाते हैं, दैट इज टू गो टू वैलिडेशन टू डायरेक्टर इंडस्ट्रीज, finally has to go to SIDBI for bank appraisal of the DPR. Then the state level committee passes through that, and then goes the technical evaluation, and finally the approval by Government of India MSME. मैंने अपनी बात को बहुत ही संक्षिप्त में समझाने की कोशिश की है। किसी भी भाई को कोई भी बात पूछनी हो, एनी टाइम यू कैन कॉल मी। दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ द day 1 to the time we start our cluster. We have to submit the application to the SPVs. Then there will be the physical verification of the units. Then it will be recommended to Director of Industries. Then the process of making DSR. Then the validation of DSR. Then DSR is approved. Then the DPR is being proposed. Then the DPR is being processed by Director Industries. Then the bank appraisal, then the state level committee meeting, then final letter approval, then the signing of bi-party agreement, and then e-procurement of works and goods, the tender processes, and finally the release of grant. All this takes a little bit time, but surely not much. Now the things are smoothened very well, बहुत smooth हो चुकी हैं, and the MSME directors, MSME teams are really very helpful on the node. वो चाहते हैं कि हम और मेहनत करके जो भी हम सपोर्ट गवर्नमेंट से लेना चाहते हैं हम ले, मगर हम कुछ करके दिखाएंगे। तो we are trying our best to prove them what we have done, and we'll try our best to prove them in the coming future. These are the facilities we have done in the cluster with only one is tool room facility, one is blanking, automatic blanking facility, one is blade and knife making facility, and semi-automatic buffing machines and impact machine we have opted in the Kundli cluster. That's all I would have to say with you. And
have to share with you. Thank you, Rajiv ji, so much. Can we have it? Lovely. राजीव जी, बहुत इंटरेस्टिंग है ये. इनफैक्ट व्हाई आई वाज सो इंटरेस्टेड कि इसके बारे में हम बात करें, बिकॉज समटाइम्स यू नो वी टॉक अबाउट ये स्कीम है, वो स्कीम है, एंड एमएसएमई कैन नॉट रिलेट और कनेक्ट टू इट. जब हमारी इंडस्ट्री से कोई करता है ना, तो इट्स मच मोर रिलेटेबल, इट्स मच मोर, आपको लगता है कि यार ये तो फिर दिल्ली में हो गया तो बॉम्बे में भी हो सकता है, चेन्नई में भी हो सकता है, व्हाई कांट वी डू इट. सो इट्स अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट. और मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर पीपल टू इमेजिन एंड पीपल टू थिंक कि ये हो सकता है, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं. सो आई थिंक दैट इज व्हाई दिस प्रेजेंटेशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट. जब ये शुरू हुआ था तो सबने यही सोचा था ये हो नहीं सकता है, तो ये सहयोग है हमारे दोनों बाकी डायरेक्टर्स का, पवन जी का और सुधीर जी का. सबने मिलकर कसम खाई कि हमने ये करना ही है, कैसे भी करना है. बहुत असुविधाएं भी हुई और मगर ये चैलेंज हमने एक्सेप्ट किया and we all able to do that. No, it's such an excellent thing to do. So I will start some question and answers, I think, since everybody is done with the presentation. Just one thing I would like to say, since Joint Secretary Saab is there and everybody is there, कि MSMEs के अंदर एक बड़ा misconception है, या maybe even truth है, कि government is very serious. Government and all the organizations are very serious about giving incentives, backing MSMEs, making us 5 trillion. But वो ground level पे उनको वो confidence नहीं आता. They don't have the confidence, they don't have the access. And I think today a lot of those questions have been answered. But I think let us still answer a few more. Sharma ji, would you want to start with one? मेरे को एक्चुअली 2-3 फोन मतलब मैसेजेस आ गए. पीपल आर लिटिल इवन शाइंग फॉर रेजिंग द क्वेश्चंस आल्सो. तो एक क्वेश्चन ये आया अभी जो मैं पढ़ के बताता हूँ कि साहब एक स्कीम आई थी जिसके अंदर एग्जिस्टिंग लोन के ऊपर 20% एडिशनल कोलेटरल फ्री लोन वाज परमिटेड बाय द गवर्नमेंट. तो हम जब बैंक से पूछने गए तो बैंक वाले बोले कि भैया जो एडिशनल 20% ले रहे हो उसके कम से कम 1 से 2% की इंश्योरेंस आपको लेनी पड़ेगी. तो आई डो नॉट नो, लोग डर के मारे नहीं पूछ रहे यहाँ पे, लेकिन वी कैन एनोनिमसली अरेंज द क्वेश्चंस फॉर दिस. एक ये अभी दूसरा मेरे को ये बताया गया है कि मुझे ज़्यादा इंस्ट्रक्शन दी गई है कि जरूर पूछेगा कि मार्च के अंदर अभी कुछ सैंक्शंस दी गई थी बैंकों से, पर ये जैसे वेव 2 आई उन्होंने उन सैंक्शंस को कैंसिल कर दी. तो एक तरफ तो गवर्नमेंट इतना पॉजिटिवली, इतने पैसे, सब कुछ विलिंगनेस, सब कुछ ठीक ठाक है. तो जो मेरा कंसर्न रहता है, जिसको मैं एज कंप्यूटिंग बोलता हूं, कि समस्या के जगह के ऊपर इसका सोल्यूशन होना चाहिए. तो ये आई डू नॉट नो हाउ दीज 2 पॉइंट्स विल बी एड्रेस्ड बाय दिस फोरम, बट दिस इज सरप्राइजिंग. सर, आई वुड लाइक टू टेक फर्स्ट क्वेश्चन. जो ये ECLGS स्कीम जो है, इसमें आपकी कोई एडिशनल अमाउंट इन्वॉल्व नहीं है. एडिशनल अमाउंट 20% आपकी वो जो है, जो भी आपका टोटल आउटस्टैंडिंग था उसको 20% बैंक सैंक्शन करेगी. उसका कोई ना तो कुछ फीस है, ना प्रोसेसिंग चार्जेस हैं, तो ना ही सिमिलरली कोई गारंटी फी नहीं है उसमें, क्योंकि NCGTC जो है वो ये गारंटी प्रोवाइड कर रही है. NCGTC इज द एसोसिएट कंसर्न ऑफ SIDBI, एंड उसकी गारंटी के बेस्ड पर ही बैंक के लिए बिल्कुल रिस्क फ्री लोन है, क्योंकि जो भी रिस्क है दैट इज बीइंग टेकन केयर बाय द गवर्नमेंट इन द NCGTC. यस सर. इनफैक्ट फ्रॉम SIDBI साइड हमने इसके साथ एक स्कीम और स्टार्ट की जो हमारे कस्टमर्स के लिए, क्योंकि SIDBI बिसाइड्स इनडायरेक्ट फाइनेंस, SIDBI डायरेक्ट फाइनेंस भी करता है. उसमें हमने अपने कस्टमर्स के लिए एक लिक्विड करके भी एक स्कीम दी है जिसमें हम एडिशनल अमाउंट भी दे रहे हैं. एंड सिमिलरली वहां पर कोई गारंटी नहीं है NCGTC की, बट स्टिल वी आर नॉट टेकिंग एनीथिंग एल्स. सौरभ जी, इसके ऊपर डिटेल आपको सेपरेटली प्रोवाइड कराएंगे. ये एग्जैक्टली ही बताया गया है कि जब ये कहा गया कि जी इसका जो भी रूल है मेल कर दीजिए, तो वो ये कहा गया कि इसका फॉर्मल कम्युनिकेशन आपको नहीं दिया जाएगा, लेकिन आपको इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी. तो एनीवे, ये तो डाटा भी निकाला जा सकता है कि उस स्कीम से पहले कितने इंश्योरेंस हुई थी, स्कीम के बाद कितनी इंश्योरेंस बिकी. सो दिस ऑल कैन बी डन, बट द पॉइंट इज वी हैव टू टेक दिस plight of that fellow who has given this. It could be outlier also, it could be majority also, I do not know. But anyway, let's we can move forward. Yeah. Jitendra ji, please continue.
Yeah. So no. I think Pavanji, you wanted to ask a question, is it? Because then there are a lot of questions coming from the panelists also, and again, as I said, most of them are. I can read some of them. How much subsidy is available to a CC loan holder? So one of the very interesting question is somebody started a facility in Jammu, and he's saying, is the government of India also giving these kind of subsidies and hand-holding in Jammu, and how can they avail it? So it's an interesting question if somebody can take it. Sir, I would like to take it. If you talk about Jammu, in Jammu we have IDS scheme which is just launched, and I think government is providing a subsidy under 30% subsidy on the total investment in core plant and machinery. So that is available from the government side. Okay, that is excellent to know. From the panel, anybody want to ask the questions, or maybe we can go? तो जम्मू वाला बता रहे थे, इन एडिशन अगर ये अभी जो ट्रेडिंग भी एमएसएमई में आ गया है, हाँ जी, और प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जो पीएमईटीपी प्रोग्राम है, उसमें भी आप सर्विस सेक्टर में 10 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसमें करीब 25 से 35% तक की सब्सिडी अवेलेबल है, और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का कुछ भी काम कर रहे हैं तो 35% तक सब्सिडी अवेलेबल है फॉर लोन्स अप टू 25 लाख रुपीस। तो ये शायद ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं जम्मू में, तो उसमें सर्विस सेक्टर में इसको कवर हो सकता है। Perfect. Thank you so much, sir. Lot of questions are being asked about. People are saying money is one. In terms of, ऐसे आपने गर्ग साहब ने उसके बारे में जिक्र भी किया कि about technology, about design, about exports, marketing for MSME. Because see, MSME को सबसे बड़ी hand holding चाहिए जहाँ उनका access directly नहीं है. So are we having any schemes where, let's say, they want to do exhibitions, they want to do trade shows outside, they want to do marketing, get the latest machinery, technology in India. So are we doing any kind of hand-holding over there for MSMEs? Because they need that support to have that courage to take that step. If anybody could take that. हाँ, मैं बोलता हूँ, अगर किसी को भी बाहर विदेश में जाना है टेक्नोलॉजी देखने के लिए, मार्केट देखने के लिए, या एग्जीबिशन लगानी है, तो इसके लिए एमएसएमई की स्कीम्स हैं, जो कि आप एमएसएमई के पोर्टल पे, वेबसाइट पे जाइए तो वहाँ पे सारी स्कीम्स आपको मिलेंगी। उन स्कीम को रीड करिए, या प्राइवेटली फिर आप किसी से भी बात कर सकते हैं, जो कि एमएसएमई के ऑफिस हर डिस्ट्रिक्ट में पूरे कंट्री में बने हुए हैं, या फिर अपने व्यापारी भाई जो वहाँ पे इंटरनेशनल एग्जीबिशन करते हैं, या फिर मेरे को बात कर सकते हैं। मैं अपना नंबर भी शेयर कर सकता हूँ, 9811178827। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आ रहे हैं। अगर हम जीतू भाई ऐसा कर सके, इन क्वेश्चंस के इंडिविजुअल को आंसर भेज सकें तो भी वो बेटर रहेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस वेबिनार से रिलेट नहीं करते हैं। यहाँ हम मोटा मोटी एमएसएमई की स्कीम्स के बारे में या गवर्नमेंट स्कीम्स और थोड़ा बैंक का भी इन्वॉल्व किया है, तो हम सबको जवाब दे पाएंगे तो अच्छा रहेगा। और वेबिनार में पवन जी क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू टेक ऑल दीज क्वेश्चंस एंड लेट मी टेल यू, काफी जैसे गर्ग साहब ने भी कहा कि प्राइसिंग से बहुत इम्पैक्ट है लोग, सो काफी मेरे पास पर्सनली भी क्वेश्चंस आए हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अबाउट द प्राइसिंग इम्पैक्ट एंड द डिमांड इन द फ्यूचर। तो मुझे लगता है इवन दो इट इज नॉट कनेक्टेड आज के टॉपिक से, बट उनको हम सेपरेटली वी कैन हैव अ सेपरेट वेबिनार, और इवन अलग से हम उनको जवाब दे सकते हैं, बिकॉज़ दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट ऑन योर ऐप आल्सो, वी कैन क्वेश्चन somebody can reply. Perfect. And sir, प्लीज। थैंक यू सर। मैं जो अभी कंसल सर ने मेंशन किया, मैं उसमें ऐड करना चाहूंगा। इफ यू गो टू मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई वेबसाइट, यू जस्ट टाइप this is msme.gov.in, and there is a tab called schemes. There you will find ebook on schemes for MSME. So if we go through that, whatever schemes Ministry of MSME is offering for the MSME sector, so those all the details are readily available there. Yes, after that the question comes, what about execution, implementation?
So here, as I was discussing, that you need to have a hand-holding agency, you need to have a, you know, a partner who can take you through this journey, who can support you in cluster development, who can handhold you for this foreign tour, for technology demonstration, or if you would like to go for marketing linkages or for anything. For that, you need to have the support of advisory consulting agencies, for which, as I offered, GT Bharat is already there. So just go to MSME website for all the participants. Just have a look on the scheme, and you will come to know that whatever queries are coming up, what kind of subsidy, what kind of what is cluster, any scheme for foreign visit, everything is there. Definitely, we will. Yeah. Okay, one very pertinent thing that is coming in, maybe Garg Saab can also highlight on this, skill development. जो मिनिस्ट्री ऑफ MSME आपने गर्ग साहब पहले भी कहा, lot of people are looking for a skilled operators and skilled labor in their factories, especially MSMEs. Fund उनको चलिए अपन ने help कर दी, we can help them with all the hand holding. Skill development is something that I think government of India is also very serious about. Sir, वहाँ पे कैसे हम इनको help कर सकते हैं? That is a very concerning factor for everybody, to have access to skilled labor. जी तो भाई, इसके लिए मैं थोड़ा इंडस्ट्री को बोलूं या भाई साहब? हाँ, इसके बाद फिर पवन जी मैं चाह रहा था आप गर्ग साहब के साथ एक 2-3 क्वेश्चन का सेशन भी कर लें। जो स्किल डेवलपमेंट का है, ये थोड़ा सा जो सब्जेक्ट है, बड़ा इजी वे में अगर हम लें तो हमें बहुत बड़ी हेल्प मिल सकती है। स्किल डेवलपमेंट के सेंटर्स हैं हमारे काफी इंडस्ट्रियल एरियाज में और इधर उधर। जो स्किल डेवलपमेंट की स्कीम है उसको अवेल करके और स्किल डेवलप करते हैं, तो हमारी इंडस्ट्री उनके साथ में टाई अप कर सकती है। उनसे हम डिमांड करें कि भाई हमें इस तरह की स्किल चाहिए, इस तरह के बंदे चाहिए, और जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे हम कर सकते हैं। और इनके बंदे अगर हम मान लो अपने यहाँ रखते हैं 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, तो आधी जो सैलरी है वो गवर्नमेंट देती है। तो कई कंपनी तो इतनी स्मार्ट है, मेरे ख्याल हमारे ट्रेड में नहीं है, मैंने दूसरे ट्रेड का किसी को जानता हूँ, 500-500 बंदे जो है ना लौट के लौट रखते हैं और आधी सैलरी में उनसे 3 महीने काम भी कराते हैं और सीख भी जाते हैं, और जो अच्छा सीखते हैं उनको परमानेंट रख लेते हैं। तो ये बड़ा बढ़िया सब्जेक्ट है। इसके अंदर अगर हमें कुछ चाहिए तो वो ये चाहिए कि अगर हम भी मतलब इंडस्ट्री के अंदर ही स्किल डेवलपमेंट का काम कर पाए, अगर कुछ हमें गवर्नमेंट की कोई स्कीम हो, फैसिलिटी हो, उसके बारे में पता लगे, क्योंकि वो ज्यादा रिलेवेंट रहेगा और उसके अंदर में कहीं ना कहीं इंडस्ट्री आगे बढ़ सकती है, क्योंकि इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेबर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और बहुत पर्टेनिंग प्रॉब्लम है। या थैंक यू। मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा जो पवन जी ने बोला। हम लोगों ने मैं जिंदल स्टेनलेस के एक इनिशिएटिव को शेयर करना चाहता हूँ। पवन जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बट वो किस तरीके से अवेल किया जाए, क्योंकि नेविगेशन थ्रू द मेज ऑफ दीज कॉरिडोर्स इज नॉट सो इजी मेनी टाइम्स। तो NSGC के अंदर देर आर अबाउट आई थिंक 37 डेडिकेटेड सेक्टर्स, जिसके अंदर ये जो फैब्रिकेटर हैं जो वेल्डिंग करते हैं स्टेनलेस स्टील की, क्योंकि हम सब जानते हैं कि स्टेनलेस स्टील क्या थोड़ा संभाल जो है वो स्टील से अलग है, तो थोड़ा सा समय लग जाता है समझने में। तो NSGC के अंदर कैपिटल गुड्स सेक्टर के अंदर हमने किसको वर्ड बोलता है, क्वालिफिकेशन पैक, QP बोलते हैं, वो हम लोगों ने अप्रूव कराया है। जो ये रेलिंग, गेट, ग्रिल्स वगैरह सब जो वेल्डिंग बनाते हैं, उससे क्या सुविधा मिली है कि जो NSGC के पार्टनर्स हैं, ट्रेन द ट्रेनर्स वाला कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर उनकी फंडिंग होती है, कुछ हम भी सपोर्ट कर रहे हैं। अलग अलग शहरों के अंदर, जैसे पवन जी ने बोला कि स्किल सेंटर अवेलेबल है, 30-30 लोगों के ग्रुप को स्टेनलेस स्टील की फैब्रिकेशन ट्रेनिंग दी जा रही है। उसके अंदर भारत सरकार की तरफ से एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, जिसके ऊपर अपने अशोक स्तंभ वाली स्टैम्प भी होती है। सो इट्स अ वेरी बिग रिकॉग्निशन फॉर इवन द लर्नर्स ऑल्सो, और उनका दिस इज अ ह्यूज सेटअप अवेलेबल। द ओनली थिंग इज कि हमें कौन कौन से ऐसे कोर्सेज को हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, कौन से स्किल सेट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए, जिनके लिए QP करवाया जाए। कि अगर हम प्रेसिंग की बात करना चाह रहे हैं, अगर हम पॉलिशिंग की बात, आई डोंट नो, वी हैव टू वर्क ऑन दिस। देन थ्रू NSGC ये फंड्स आर अवेलेबल, स्किल सेंटर्स आर अवेलेबल, और इस चीज के लिए तो हम भी पूरे अवेलेबल हैं। इनफैक्ट जस्ट टू ऐड टू दिस,
आप लोग जानते हैं कि हमारी जो 4 वैन है इंडिया भर में घूमती हैं फैब्रिकेटर ट्रेनिंग के लिए स्टेनलेस एकेडमी 11 इंस्टीट्यूट्स के अंदर हम लोगों ने स्टेनलेस स्टील का कोर्स When I say institutes, I am talking about IITs and architecture colleges. पिछले हफ्ते मैं हरियाणा सरकार में मिलके आया हूँ हम जहाँ पे पॉलिटेक्निक्स और हरियाणा इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर स्टेनलेस स्टील का कोर्स डलवाना चाह रहे हैं ताकि जो आज स्टेनलेस स्टील के रिलेटेड ज्ञान की या स्किल सेट की जो कमी है वो जो है आने वाले टाइम के अंदर ग्रास रूट से ही हमारे को अवेलेबल हो जाए. So we can work on this. This is a topic which is very close to my heart also. This is something that even I am very keen about because मुझे लगता है जब तक ये solution नहीं निकलेगा we can give them all the hand holding in terms of financing and marketing and technology. अगर उसको चलाने वाले operators नहीं होंगे so MSMEs will not have a complete 360-degree solution. One more observation. I see. Please sir, please after you Sharma ji please. नहीं मैं ये देख रहा था इसके अंदर बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं विच आर द एक्चुअली द एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल जो चैट बॉक्स के अंदर हैं बेस्ड ऑन दिस वी हैव टू आंसर देम स्पेसिफिकली एंड आल्सो वी कैन क्रिएट ए स्मॉल बुकलेट वेयर ऑन योर दिस प्लेटफॉर्म स्टेनलेस बाजार we need to answer all these things. We will. I think अपने experiences हैं we cannot ignore them, we cannot deny that experience. Correct. No, I completely agree. We're going to take all these questions and we're going to get answers and publish it on the app and send an email to all our members who have attended. For sure. Yeah. जी सर जो आपने स्किल डेवलपमेंट की बात की ना अगर हम इसको MSME के लेवल पर आकर देखें तो इशू है एक स्किल्ड पर्सन जो एक स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट से निकल कर आता है लेकिन जब वो आकर यूनिट में काम करने की बात करता है ना तो वहां पर उसको मशीन पर काम करने का ज्ञान या तो बहुत लिमिटेड होता है या उसे अंडरस्टैंडिंग नहीं होती या कई बार ऐसा होता है कि वो दूसरे तरीके की मशीनों पर स्किल लेकर आया होता है. उसी तरीके से जब हम बात करें इंडस्ट्री की तरफ से तो इंडस्ट्री वाले का कहना होता है कि ये स्किल्ड वर्कर हो सकता है कि ये सीख कर आया है इसके पास एक सर्टिफिकेट एक कागज है जिस पर इसके पास ऑथेंटिकेशन है लेकिन मेरे पास जब ये मेरी यूनिट में आता है तो उन मशीनों पे काम नहीं कर पा रहा है तो मेरे लिए इसकी स्किल का यूज बहुत लिमिटेड है. और अगर हम सर पार्टिसिपेंट के तौर पे बात करें देयर आर प्रोग्राम्स यूपी स्किल डेवलपमेंट मिशन जिसके साथ में जीटी भारत भी काम कर रहे हैं अगर आप वहां पे जैसे बात करें वहां पर एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है कि पार्टिसिपेंट गया उसने स्किल ले लिया उसके बाद वो इंडस्ट्री में जा रहा है और वो बोल रहा है कि मुझे रेलेवेंट इंडस्ट्री में जॉब नहीं मिल रही है तो स्किल लेट से उसने एक्वायर किया एक पर्टिकुलर ट्रेड में उसके बाद उस सेगमेंट में उसे जॉब नहीं मिलती है वो दूसरी इंडस्ट्री में जाकर या तो अनस्किल्ड वर्कर की तरह या किसी दूसरे ही ट्रेड में किसी और जॉब में या कई बार सर्विस इंडस्ट्री में जाकर अपना काम करना शुरू कर देता है. इसमें सर ये देखा गया कि जहां पर भी पार्टिसिपेटरी अप्रोच के साथ काम किया गया जो इंडस्ट्रीज हैं वहां पर या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को इस स्किल के पूरे ओवरऑल इनिशिएटिव में पार्टनर बनाया गया. इंडस्ट्री एसोसिएशन या इंडस्ट्री खुद आगे आए और आकर उन्होंने जब करिकुलम सेट हुआ वहां पर भी उन्होंने इनपुट्स दिए. जब वो लोग ट्रेन होकर निकले क्योंकि वो उनके दिए हुए इनपुट्स के बेसिस पर उन्होंने ट्रेनिंग ली है तो वहां पर उनकी अडॉप्टेबिलिटी उनकी एक्सेप्टेबिलिटी उनकी यूनिट में ज्यादा है. ऐसे जगहों पर देखा गया है कि ना सिर्फ रिजल्ट्स अच्छे आते हैं बल्कि उस तरह के प्रोग्राम में जो ये यूथ है जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो स्किल के लिए जाना चाहते हैं उनको भी एक एश्योरेंस मिलती है कि अगर मैं इस प्रोग्राम में जाता हूं तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर मुझे एम्प्लॉयमेंट मिलने की इसी ट्रेड में एम्प्लॉयमेंट मिलने के ज्यादा चांसेस है if I compare to any other program. I agree with you and I think industry has to step forward. We cannot rely on the government for everything and I completely agree. In fact, Saurabh Vajpayee, lot of people are asking me about funding. SIDBI especially is a forerunner. तो लोगों को again थोड़ा सा शायद आपको लगे कि we are putting you in a corner, but लोगों को अभी तक ना वो confidence नहीं आ रहा. People are asking कि सर आपने बड़ी अच्छी presentation and it's beautiful and all that, but when we go on the ground, it's not easy. So I would love for you to give that assurance, and if people know that the government and SIDBI are absolutely keen because people still need that assurance. That's the kind of input I'm getting. Yes, sir, definitely government is doing a lot of work for the MSMEs. In fact, we know, and the MSMEs, in fact, they are growing also. In fact, especially if you are going for the steel sector, in fact, I will say that, okay, the sector is really growing well. Regarding the finance part is there, in fact, as far as SIDBI is concerned, I told you that we are doing both the things. We are doing indirect finance as well as direct finance, and we are also providing all the knowledge gaps and what the government schemes are there. We are trying to implement them.
So as far as direct finance is concerned, in fact, I will say that we have around more than 70-80 branches all over the India, and like I also worked in a steel cluster. In fact, near the steel cluster, I will say I was heading the Chandigarh branch till last year. Okay. And the Mandi Govindgarh is very close from there. In fact, Jagadhri also we were covering जहाँ पे आपका वो steel वाला sector है. So in fact, I will say that the SIDBI also having some of the very good schemes, and the loans are finance are available at the low cost. In fact, if you can visit some of the SIDBI branches, like Jagadhri के पास ही हमारी यमुनानगर branch भी है, Chandigarh is already there. Then So, you can Mr. find some Rakesh, good sorry to schemes interrupt there. you. If somebody, let's say from the participants or anybody from our industry, is there any specific email ID or any contact that they can just send their mail or call up somebody and say, okay, this is how you proceed. तो क्या उनको एक direct access मिलता है from this platform कि ठीक है आपकी जो भी issues हैं, जो भी आपको चाहिए, you can mail on this mail ID. If you can just provide us later, and they can send it to everybody. Because they want to just have this one contact information where they can just उनकी hand holding पूरी हो जाए. Definitely sir, SIDBI in fact SIDBI के website पे आपको mail ID सारा मिल जाएंगी. In fact my personal mail ID also I can share with you. Right now I am looking after the commercial development vertical. So अगर P&D से related कोई भी चीज होगा तो you can directly contact me. Even if it's not there, then my mail ID is already with you. You can share. No issue. Thank you so much. SIDBI के website पे वैसे आपको जो भी general queries related हैं, उस mail IDs हैं, general queries you can share there. So Pawan ji, Sudhir Garg साहब is there, and अगर थोड़े आप you wanted to have a chat with him about industry specific queries. Pawan ji. Please okay. Pawan ji, can you hear me? Sharma ji, will you like to take up yeah, Karan? Sorry. Meanwhile, let me ask a question. Right. Basically, I'll ask a very specific question. MSMEs generally scale of economies से तो वैसे ही परेशान रहते हैं क्योंकि in some products, at least in my product, I am competing with a lot of bigger companies as well. So I always had this question कि हमारे को जो electricity cost पड़ती है compared to the larger companies, वो काफी ज़्यादा पड़ती है, I mean per kilowatt. So are there any schemes for the electricity tariff that can support MSMEs? तो आई नो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और दिस इज वन एरिया जिसकी वजह से हमारी कॉम्पिटिटिवनेस में बड़ा जबरदस्त फर्क आ रहा है. लेकिन एक जो नया डेवलपमेंट हो रहा है, जो मुझे लगता है इसका सॉल्यूशन बन सकता है, वो है सोलराइजेशन. सो एक तो भारत सरकार की स्कीम है जिसमें कि आपको सोलर प्लांट के लिए करीब 30% तक की सब्सिडी अवेलेबल है. और इसमें भी दो तरह की स्कीम है, जिसमें कि एक तो खाली आप पीवी यूनिट लगाते हैं अपने रूफटॉप पे, और अगर बैटरी बैकअप के साथ लगाते हैं उसमें भी करीब 30% तक की सब्सिडी अवेलेबल है. और उसमें आप कम्युनिटी टुगेदर आल्सो यू कैन पुट अप अ प्लांट, यानी कि अगर 10 इंडस्ट्री मिल जाए तो वो अपना एक आइसोलेटेड प्लांट लगा सकते हैं अप टू 1 मेगावाट आई थिंक, या 500 किलोवाट तक के लिए है, शायद 1 मेगावाट है, जिसमें कि आपको ओपन एक्सेस का प्रावधान भी अवेलेबल है. तो आप एक जो कॉमन फैसिलिटी सेंटर MSC CDP के तहत भी इसको प्लान कर सकते हैं. अदरवाइज स्टेट वाइज अलग अलग पॉलिसी है, इसमें आई नो थोड़ा चैलेंज है, स्टेट्स बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट नहीं करती हैं. बट उसमें आप लोग क्या कर सकते हैं कि जो आपका बेस लोड है, तो बेस लोड को आप अपने सोलर प्लांट के थ्रू फीड कर सकते हैं, और बिना ग्रिड कनेक्टिविटी के भी आप सोलर प्लांट लगा सकते हैं. तो उसमें कम से कम 40% से 50% तक आपकी एनर्जी जो रिक्वायरमेंट है आप सोलर से, या कम से कम सोलर से ले सकते हैं एक शिफ्ट की. ऑब्वियसली सेकंड शिफ्ट में दिक्कत आएगी. तो उस तरह से आपकी सोलर पावर विद बैटरी बैकअप आज की डेट में करीब 5 से 6 रुपये में अवेलेबल है, और विदाउट बैटरी बैकअप 3-3.5 रुपये में अवेलेबल है. फर्दर आप पूरा सोलर प्लांट लगाने के लिए आप एस्को मॉडल फॉलो कर सकते हैं, जिसमें कि आपको पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, और somebody else will put money for you and they will put up a solar plant for you, and you only have a contract with them to buy the power at a fixed cost which will remain same for next 25 years. So this is one model.
Excellent. Sir, Otherwise, MSME is working with Ministry of Power to bring down the cost of power for MSMEs. But yes, अभी immediately कुछ इसका solution नहीं है हमारे पास. Just to comment on the 2 points, sir. Thank you for a detailed answer. एक तो जो open access आपने mention किया, unfortunately, I mean we used to buy a lot of power from open access, but Haryana government ने cross subsidy surcharge इतना बढ़ा दिया to promote us to buy from discoms कि वो viability खत्म हो गई. और unfortunately similar situation is on the solar side, क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट ने पहले तो जो नेट पावरिंग थी वो बंद करी, और उसके बाद अब बियॉन्ड अ सर्टेन किलोवाटेज, आई मीन मैंने अपने प्लांट में 100 किलोवाट का ऑलरेडी सोलर लगाया हुआ है, और उससे ज्यादा मैं लगा नहीं सकता बिकॉज वो अलाउड नहीं है. तो दीज आर दी 2-3 चैलेंजेस कि हमें अगर सस्ती पावर भी कहीं से मिले या हम जनरेट करना चाहें वो हो नहीं पा रहा है. नहीं, जैसा हम सही कि नेट मीटरिंग के साथ आपकी 100 किलोवाट की लिमिट हो सकती है, लेकिन बिना नेट मीटरिंग के लिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं ना. नहीं, वो प्रॉब्लम. हाँ जी, 2 यूनिट लगा सकते हैं, एक विद नेट मीटरिंग, एक विदाउट नेट मीटरिंग. ओके. तो जो आपका बेस लोड है वो बिना नेट मीटरिंग के आपकी जो पावर के रिक्वायरमेंट को मीट अप करेगा. आपका बेस लोड कर्व बना सकते हैं आप. तो मान लीजिए आपका 50 किलोवाट का बेस लोड है जो कि कंटिन्यूसली रहता है, सो दैट कैन रिमेन विदाउट नेट मीटरिंग. और जो एडिशनल आपकी नेट मीटरिंग है वो आप उसकी नेट मीटरिंग के साथ ले सकते हैं. दैट्स हाउ दैट इज अनदर पार्ट. ओके. सिंस ये हरियाणा से संबंधित है तो आई वुड लाइक टू गिव कुछ ना कुछ तमाशा कर ही रहे हैं. डिस्कॉम्स को अपना चैलेंज है कि कैसे वो सस्टेन करें. सो आई नो दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स वर्ड बट वी हैव टू फाइंड आउट सम सॉल्यूशन. मैं सर डॉक्टर साहब जस्ट सिंस ये हरियाणा शब्द आया है तो हरियाणा वालों को मैं थोड़ा सा एक बताना चाहूँगा कि दिस चैलेंज इज़ वेरी वेल नोन. इन फैक्ट देर आर अदर इश्यूज लाइक रिलायबिलिटी चार्जेस एंड ऑल्सो द बैंकिंग चार्जेस एसोसिएटेड, जो लोकलाइज्ड चैलेंजेस है. अगेन सेंटर इंटेंट इज समथिंग, देन डिस्कॉम वर्सेस कमीशन वर्सेस ऑल दीज थिंग्स, देर आर सर्टन चैलेंजेस. बट एसोचैम एंड पीएचडी के प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं कि सोलर को जो जिस इंटेंट से सोलर को पुश किया जा रहा है, फॉर दैट मैटर आरई को, बिकॉज सोलर अलोन इज नॉट ए वेरी स्टेबल वे ऑफ गेटिंग द पावर. मौसम पे डिपेंड करता है, दिन रात पे डिपेंड करता है. सो दिस इज द टॉपिक विच इज बीइंग टेकन अप सेपरेटली बट राइटली एडवाइज्ड बाय गर्ग साहब. इसके अंदर कुछ चैलेंजेस तो हैं, बट वी विल ट्राई ऑन दिस फ्रंट ऑल्सो. पवन जी, आप गर्ग साहब से कुछ पूछना चाह रहे थे? सभी को नमस्ते. सुधीर गर्ग जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी एमएसएमई भारत सरकार, विजय जी प्रेसिडेंट जिंदल स्टील, जीतू भाई, राजीव जी और प्यारे दोस्तों और सारे इंडस्ट्री के मेरे फ्रेंड्स, आज हम जो इस वेबिनार के लिए इकट्ठा हुए हैं तो हम एक ये शुरुआत कर रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री कैसे आगे बढ़े. इसके अंदर विजन हमारा है समृद्ध भारत, एक भारत और एनरिच लाइव्स. सर, मैं आपको थोड़ा इंडस्ट्री से रूबरू कराना चाहूँगा कि जो स्टेनलेस स्टील की इंडस्ट्री हमारी है उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग घरेलू सामान की जो जरूरत है, स्टेनलेस स्टील की कटलरी है, बर्तन है, रोज़मर्रा की आइटमें हैं, वो बनाते हैं, जो कि पूरे भारत में नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट इंडस्ट्री फैली हुई है, जो कि हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बंगाल, बिहार, यूपी, राजस्थान, दिल्ली, जगाधरी, मुरादाबाद, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता और अब इसमें बहुत सारे शहर देश के और भी जुड़ गए हैं जो कि पहले नहीं थे. इंडस्ट्री जो है वो फैल रही है, जिसमें कि जैसे हापुड़ है, भिवानी है, हिसार है, पूना है, दमन है, बसई है, बेंगलोर है, अहमदाबाद है, जोधपुर है, और इस बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं कि वो एक ग्लोबल चैलेंज दे रहे हैं. अब जो सीन इंडस्ट्री का है वो उसके अंदर में कुछ जरूरतें हैं, क्योंकि ये सब कुछ अपने आप हो रहा है, तो इसको हमें इस तरीके से करना चाहिए कि जो बेस्ट प्रैक्टिस है उसको तो कम से कम हम देख लें और नेक्स्ट प्रैक्टिस पे हम आ जाएं और वाइजली हम इसको कर लें. तो भारत सरकार हमारी इसमें जरूर मदद कर सकती है, जिसके अंदर मेरा विजन ये है कि जो डेंसिटी ऑफ पीपल है, लेबर ओरिएंटेड जॉब्स है, वो हम लोग उनके गांव में ही क्रिएट कर दें
ऐसा एक मॉडल जो है हमारी कंपनी ने मुरादाबाद से करीब 50 किलोमीटर दूर एक मई गांव है वहां पे क्रिएट किया है। तो वहां के करीब 4000 वर्कर्स जो है वही गांव में ही काम करते हैं। हम लोग अपना सामान भेज देते हैं और वहां से बन के आ जाता है। वो लोग घर में जब रहते हैं तो अपने माँ पिताजी है, वाइफ है, बच्चे हैं, एजुकेशन है, खेत है, उन सब का भी ख्याल रख लेते हैं। और जो हमारी क्वालिटी है वो करीब 25% बढ़ी है और कॉस्ट भी करीब जो उस पर्टिकुलर जॉब की जो कॉस्ट है वो 25% के करीब डाउन हुई है। तो ये एक मॉडल है, इसमें अगर कुछ आप देख सकें तो ये मॉडल मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्री को करना चाहिए, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में बहुत लेबर है। दूसरी चीज जो एनर्जी की बात है अभी हुई है, तो एनर्जी काफी यूज होती है हमारे यहाँ। अभी एमएसएमई से फोन भी आया था करनाल से कि इस विषय में कोई वो हमसे मीटिंग करना चाहते हैं क्लस्टर से। तो एनर्जी का कंजप्शन काफी है हमारे लिए। इसके बाद लॉजिस्टिक का खर्चा है। जो मेन ये 3 चीजें अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं, जैसे सैलरी है, लॉजिस्टिक है और एनर्जी है, तो हम वाइबिलिटी की तरफ बढ़ जाते हैं। उसके बाद आती है टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी में हमें मानना पड़ेगा कि भाई हम काफी पीछे हैं। हमारा जो मेन कंपटीटर है वो चाइना है, परंतु फिर भी मैं ये कहता हूं कि अगर दिल से, दिमाग से और ध्यान से काम करें तो टेक्नोलॉजी तो जो है ना, 2 मशीन पास में रख दी तो ऑटोमेशन हो जाता है। उस मशीन का जो पीस जो है अपने आप स्लिप होकर ग्रेविटी से दूसरी मशीन तक पहुंच जाता है। तो हम लोगों ने ऐसे बहुत कुछ विन किया है। अभी मैंने ट्रेड में एक अपना लोगो डाला था जिसमें कि मेरा ये पोस्चर है, ये वाला, कि क्वालिटी ऊपर और प्राइस नीचे। तो ग्लोबल प्राइस चैलेंज जो है ना वो हमारी कंपनी ने दिया है इन विषम परिस्थितियों में भी। तो हम हर परिस्थिति में काम कर सकते हैं और भारत सरकार हमारे साथ है। ये हमने जो कुंडली में क्लस्टर डेवलप किया है वो इस बात का प्रमाण है। बस कमी है तो थोड़ी बहुत इस बात की है कि कहीं ना कहीं हम बहुत सारे ऐसे कामों में बिजी हैं कि जो काम जो है ना कि मालिक वहीं फंसा रहता है फैक्ट्रियों का, और पैसा भी मालिक का सारा फंसा रहता है। कहीं सिक्योरिटी दे रखी है बिजली में, कहीं जीएसटी में पैसा फंसा है, कभी MEIS नहीं आ रहा है हमारा। सर ये प्लीज नोट कीजिएगा, ये हमें मदद चाहिए और ड्रॉबैक हमारे को चाहिए। अब चाइना जो है ना वो इतना ज्यादा मतलब अग्रेसिवली काम कर रहा है अपने कंट्री के लिए या कंट्री पीपल के लिए। तो उन्होंने अब रॉ मटेरियल पे इतने सारे जो है ना वो सैंक्शन कह सकते लगा दिए हैं कि उनकी लोकल इंडस्ट्री जो फिनिश गुड की है वो चलने वाली है। तो हमको भी कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे। तो उसके लिए जो है ये थोड़े बहुत सुझाव मेरे हैं। तो मैं एक वक्ता तो नहीं हूं पर कोशिश करता हूं, क्योंकि मेरा ट्रेड है इसलिए मैं थोड़ी बात आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। इसके अंदर हमारे को जो जरूरत है वो सबसे पहले तो लेबर के होम टाउन में, और दूसरा क्लस्टर डेवलपमेंट की। क्लस्टर डेवलपमेंट का जैसे एक मॉडल ये तैयार हो गया है तो कम से कम 10 मॉडल ये और तैयार हो सकते हैं जल्दी से जल्दी। और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के अंदर में कुछ चीजें जो ऑटोमेशन में चाहिए, जैसे कि क्वालिटी कंसिस्टेंट के लिए जो है ना हमारे को चाहिए ही चाहिए। तो उसके अंदर इंडस्ट्री 2 से इंडस्ट्री 4 में कन्वर्ट करना और SME को लार्ज तक लेके जाना, ये हमारे सामने चैलेंज है जो कि हम पूरा कर सकते हैं अगर आपका आशीर्वाद बना रहे। और जो ये जैसे चीजें हैं, मान लो कोलैबोरेशन है, कलेक्टिव एफर्ट है, कोलेजियम है, क्लस्टर डेवलपमेंट है और टेक्नोलॉजी है, ये सब चीजें जो है मतलब डिजिटल वर्ल्ड है, ये हमारी इंडस्ट्री सुन तो चुकी है पर अभी इसको एक्सपीरियंस करना चाहती है। और इंडस्ट्री आगे जब भी बढ़ेगी जब इसको एक्सपीरियंस करेगी। अभी हमारी इंडस्ट्री के अंदर 40-50 साल पुरानी मशीनें हैं और जो स्कीम्स हैं वो डायरेक्ट हम अवेल कर पाए उसके अंदर में काफी कठिनाई आती है। सर जैसे हमने कुंडली में क्लस्टर डेवलप किया है, so we know it took a long time, so there are many things which maybe can be corrected or can make easy like a single window। तो इसके अंदर में अभी मुझे लगता है कि हमको तो जो प्रयास करना ही है और सरकार को भी बहुत प्रयास करना है, क्योंकि देश को थैंक यू पवन जी सो मच फॉर दिस। एंड सब ये मोर और लेस आई थिंक जस्ट टू गिव यू अ समरी, इट इज अबाउट लेबर,
availability and skilled labor. It is about technology upgradation. It's about the money, cash flow. क्योंकि आप ये समझिए कि MSME जिंदा ही अपने कैश फ्लो पे रहती है, तो वो जो कैश फ्लो एक्सेस है, तो बस सर ये थोड़ा सा अगर आप इसके ऊपर सर ये जो है वो हैंड होल्डिंग से बढ़ के आपका वो चाहिए, जैसे वो था ना मुन्ना भाई MBBS में प्यार की जफ्फी, आप वो दे दो बस, हम काम तो कर लेंगे। थैंक यू सर। सर तो पवन जी ने जो बात कही, आई थिंक बहुत ही सही बात कही आपने कि आज की डेट में इंडस्ट्री को गांवों की तरफ मूव करना पड़ेगा जहाँ पे कि लेबर अवेलेबल है, उससे ही आपकी कॉस्ट कम होगी। और इसके लिए जो आपने एक पहला क्लस्टर बनाया है, हमारी एक स्कीम है स्फूर्ति क्लस्टर की, जिसमें कि हम एक मॉडर्न फैक्ट्री के लिए 5 करोड़ रुपए तक का अनुदान देते हैं। 5 करोड़ रुपए तक का 90% अमाउंट का अनुदान देते हैं। और अभी तक हम लोग करीब 500 ऐसे क्लस्टर क्रिएट कर चुके हैं, और इन क्लस्टरों को मैं आपसे अगले 2 महीने के अंदर इसी ग्रुप को मैं ले जाना चाहूँगा इन क्लस्टर में, जहाँ पे कि हमने एंड टू एंड डिजिटाइजेशन किया है, एंड टू एंड डिजिटाइजेशन, जहाँ पे कि पूरी फैक्ट्री की सारी मशीनें आपस में कनेक्टेड हैं। उस फैक्ट्री के जितने लोग हैं उनको सारा का सारा इंफॉर्मेशन अपनी सारी अपने मोबाइल पे मिल रही है। वो सारा कार्यक्रम हमने चालू किया है और उसका इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग स्टेजेस पे है, और मैं समझता हूँ कि अगले 2 महीने में वो काफ़ी एडवांस कंडीशन में हो जाएगा। तो एक तो ये जो स्फूर्ति क्लस्टर का है, इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, स्फूर्ति क्लस्टर का हमने एक पोर्टल बनाया हुआ है, खाली आप गूगल करेंगे स्फूर्ति, SFURTI स्फूर्ति, अगर आप गूगल करेंगे तो आपका पहला पोर्टल यही आएगा, और उसके बाद आप इसको खोलेंगे तो सारी गाइडलाइन सब कुछ अवेलेबल है उसमें, ऑनलाइन प्रोसेस है। एप्लीकेशन हमारे पास बहुत तेजी से आ रही है, पिछले दिनों में करीब 500 एप्लीकेशंस आ गई हैं, तो उसको हमें एनालिसिस करने में थोड़ा सा टाइम तो लग रहा है, बट वो कार्यक्रम हमारा काफ़ी अच्छा चल रहा है। जैसे वन एरिया MSA-CDP स्कीम में जो आपने बताया, उसमें कई सारे चैलेंजेस थे। हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने उसको स्ट्रीमलाइन करने का प्रयत्न किया है। सिंगल विंडो जैसी स्थिति क्रिएट करने की हम कोशिश कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि जो बदलाव किया है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा और काफ़ी उसमें बेनिफिट लोगों को मिलना है। जो हमने टेक्नोलॉजी सेंटर जैसे अभी रोहतक में चालू हो रहा है, रादर चालू हो चुका है, और इसका फॉर्मल इनोग्रेशन अभी अगले 1-2 वीक में हो जाएगा, तो वहाँ पे आप स्किलिंग का काफ़ी काम कर सकते हैं। और जो हमारी दोनों स्कीमें हैं, ये स्फूर्ति वाली और MSA-CDP, इसमें स्किलिंग के लिए काफ़ी पैसे का प्रावधान है, करीब 20-25 लाख रुपए तक इसमें स्किलिंग के लिए मिलते हैं। तो ये इस तरह से आप स्किलिंग वगैरह में काफ़ी काम कर सकते हैं। लीन वाला एक मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि लीन का जरूर आप 80% सब्सिडी मिलती है, उसका जरूर बेनिफिट आप लोग लें, और इसमें अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। That is so nice of you, sir. Thank you so much. I think we had a wonderful, informative webinar. We can go on about this. It's so informative, but समय की मर्यादा को देखते हुए, I think Karan, would you like to give a closing statement and thank Garg and everybody? Thank you, Jitu. I totally agree. I think it was a very informative session. And some of the key points that I have noted are: have faith in the government schemes. There are ways to avail them. The schemes are real. They are just not on the paper. And जैसे राजीव जी ने बताया कि कुंडली में क्लस्टर उन्होंने क्रिएट किया, बहुत लोगों ने बहुत स्कीम्स यूज करी हैं, तो आई थिंक हम सभी लोग एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आके वी कैन यूज ऑल दी स्कीम्स। एंड जैसा सुधीर जी ने कहा कि फोकस ऑन यूथ एम्पावरमेंट, लीन क्लस्टर, skill development, and these should take MSME forward in the future. So just not taking more time, I would like to thank Shri Sudhir Garg ji for his valuable time and guidance, and I think we look forward to having more interactions with him. और जैसा उन्होंने कहा कि he will take us to visit some clusters, I personally really look forward to that. I would also like to thank Rajiv Bajaj ji, Dev Kumar, and Mr. Saurabh Bajpai for their expert presentations.
and also my fellow panelists for coming and giving their views. And finally, thanks to Jitu and Stainless Steel Bazaar for organizing this webinar. Thank you everyone from the stainless steel industry. Thank you so much everybody, and it was really nice. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you. God bless.